Good evening, students. This is Swarum Gorai, your ML trader. Today we are going to discuss the core concepts of ML, that is the machine learning pipeline, tools for machine learning, different data types involved in machine learning, and a lot more. So stay tuned and be serious about it. Okay, so let's start. Okay, so this is day two, and the main concept that we are going to discuss is pandas and numpy. So pandas is and numpy is not only the thing that is involved in machine learning. There are various steps involved in it. So what is the agenda? Agenda is this: prerequisites of machine learning career. क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वही if you want to make a career in machine learning, then the pipelining of machine learning career, detailed explanation of machine learning steps. You will be dealing with all these things, problems involved in data preprocessing, then model evaluation. Okay, this is a mathematical concept. I'll be explaining all these things. Okay, and then to ease the trading, because it will be a lot of things to ease the trading. We have a video from Boston House. Okay, so we are going to see that video. That is also very important. And then we are going to discuss about Python libraries, what Python libraries we are going to use, and then pandas, and then numpy. So these are all the things that we are going to discuss today. So let's start with the prerequisites of machine learning career. तो प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है? एक है कोडिंग कैपेबिलिटीज, आप लोग को कोडिंग आना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें तो कोडिंग आता नहीं है, तो डू नॉट वरी, कोडिंग आप करते प्रैक्टिस करते करते कोडिंग आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कोडिंग वट एवर कोडिंग विल बी डूइंग ओवर हियर, आप वो प्रॉपरली देखो, समझो। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, मेल अस, विल एक्सप्लेन यू मोर एंड मोर। ओके, और पाइथन की दो तीन वीडियोज है, जो आप देख लोगे तो आपका पाइथन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो यू शुड गो विद दोस्त। ठीक है, तो एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर ये भी आप लोग को बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप लोग एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में था। डू नॉट वरी, दैट आल्सो विल डिस्कस एंड इट इज वेरी इजी, नॉट टफ। ओके, कैलकुलस वी हैव ऑलरेडी डन इन बीसीएस 1 1, या जिसने साइंस लेके पढ़ाई की है, दोज हैव स्टडीड इन क्लास 11th and 12th with science, okay, as a stream, they must have gone through this linear algebra. This is a new concept. This is a BCA fifth semester topic, but do not worry, we'll deal with it. Okay, so that's our responsibility. Statistics is one more thing, then machine learning basics, and then hands-on machine experience with projects. All these things are there. Okay, so coding capabilities तो वो तो हम ही करवाएंगे, we will be dealing. तो do not worry, these are the things you should know. ठीक है, तो इसको मैं थोड़े थोड़े करके हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो what are the pipeline of machine learning? Pipeline is data acquisition. ओके, डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा का एक्वायर करना, कहीं से भी डेटा को हमें एक्वायर करना है, लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, द व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्रोजेक्ट्स, वी विल बी एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम Kaggle. Kaggle is an online platform where you can get lots of data, lots of problems, and there are lots of competitions. तो आप लोग यदि Kaggle, आप लोग जैसे मशीन लर्निंग की, यू यू डिड द 5 days हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, उसके बाद इफ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन, इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तो आप लोग अपना ग्रुप बनाओ। आप लोग अपने अपने कुछ बच्चों के साथ, दोज हु आर इंटरेस्टेड, ग्रुप बना के व्हाट यू टू डू, यू हैव टू टेक पार्ट ओवर देयर एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड इफ यू कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली, बिकॉज दैट्स अ competition of the world, all the people, all the core machine learning programmers or machine learning people will take part in from all over the world. Okay, yeah, it's not from India, or it's from a particular place, it's from all over the world. So you have to take part. Okay, and if you can, and you people can do that, I believe in you. Okay, and if you can, yeah, do the best, you can win, and you can grab a great job, I'm telling you. Means 60 lakhs package or 70 lakhs package or 1 crore package, you can get, yeah, without the BCA, I'm telling. BCA is no BCA MCA नहीं करने से कोई जॉब नहीं मिलता, ये यहाँ यहीं पे होता है, इट हैपेंस इन इंडिया ओनली। इन फॉरेन कंट्रीज व्हाट दे डू, और इन वेरी बिग कंपनीज, दे से दैट इफ यू नो इट, कम टू अस, बाद में हम अपना आपका क्वालिफिकेशन हम करवा लेंगे। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, दे डू लाइक दैट। तो आप लोग यदि कर सकते हो तो यू विल डू लाइक दैट। ओके, तो डेटा एक्वायर करेंगे, उसके बाद डेटा का एनालाइज करेंगे, डेटा में है क्या। ओके, डेटा ठीक है नहीं है, ठीक है, उसके बाद डेटा को प्रिपेयर करेंगे। डेटा यदि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जो बहुत सारे एरर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होते हैं, कॉमर्स होते हैं, फिर जैसे रोल नंबर इज न्यूमेरिक, तो उसके जगह कोई कैरेक्टर डाल दिए। ठीक है, कहीं पे नेम है, नेम की जगह न्यूमेरिक डाल दिए। तो इस तरह का उसको डेटा एनालाइज करना है। उसके बाद उसमें बहुत सारे काम होते हैं, दैट विल डील लेटर ऑन। ओके, उसके बाद डेटा को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, माने हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, टू फॉज आउट आउटलायर्स एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, उसके बाद डेटा को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल इज ऑलरेडी देयर, मशीन लर्निंग जैसे क्लासिफिकेशन के मॉडल्स है, उसके बाद
क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, तो आप बोलोगे जे, अरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोई भी डेटा पे लगा देंगे जो डेटा काम की है, जिसमें आउटपुट है, व्हाट इज दैट आउटपुट, एक होते न्यूमेरिक और एक होते कैटेगरिकल। कैटेगरिकल आउटपुट है तो डाल दो, नहीं, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। आपको उसमें ट्यूनिंग भी करना पड़ता है, उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। ओके, दिस आल्सो हैपेंस, ओके, अकॉर्डिंग टू द डेटा। ओके, तो हम उसमें मॉडल बिल्ड मॉडल करेंगे, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके मॉडल को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे हाउ द मॉडल इज परफॉर्मिंग। तो ये इतनी सारे स्टेप्स है, ओके, दैट वी हैव टू डील विथ, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर। तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या है, पहले मैं एक शीट ले लेता हूँ। लेट मी टेक ए शीट। जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है, इनपुट दिए, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट, दिस हैपेंस। इनपुट दिए, आपने प्रोग्राम पहले लिख लिए, उसके बाद आपने इनपुट दिए एंड यू गेट द आउटपुट, जो आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर में करने वाले हो। बट इन मशीन लर्निंग व्हाट हैपेंस, input and output both you are giving, and the machine will design an algorithm or program. ओके, मशीन डिजाइन करेगी, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूजर बना रहे, यूजर और यू कैन से प्रोग्रामर। यहाँ पे करें इनपुट आउटपुट दोनों दे दो, तो मशीन विल डिजाइन दिस थिंग। यहाँ पे यूजर और प्रोग्रामर बना रहे, यहाँ पे क्या करें, यूजर नहीं बोलेंगे, प्रोग्रामर बना रहे, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों दे दो, मशीन विल डिजाइन द प्रोग्राम। so this is the core difference between traditional programming and machine learning programming. Okay, नाउ वी गो टू बेसिक स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोग का मेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद बेसिक स्टेप्स के पहले देर आर फ्यू टूल्स, हम कुछ सीट ले लेते हैं, एक मिनट को। देर आर फ्यू टूल्स दैट वी शुड डील विद इट। कोई भी मशीन लर्निंग डिजाइन करने के पहले कुछ टूल्स होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, टूल्स फॉर मशीन लर्निंग। एक है, फर्स्ट है प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग में सोच लो पाइथन आ गया, पाइथन आप लोग को आ गया, ओके। उसके बाद नंबर टू, डेटा हैंडलिंग करना के आना चाहिए, डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजिंग। और डेटा हैंडलिंग की क्या है, क्या एनाकोडा, इसके लिए क्या है, नमपाई, पैंडास। ये क्या हो गया डेटा हैंडलिंग के लिए, ओके। और विजुअलाइजेशन के लिए क्या है, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, ओके। थर्ड में क्या होना चाहिए, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। उसमें क्या क्या है, नंबर वन इज साइकिट लर्न, जो हम लोग यूज करेंगे, इसमें सारे मॉडल्स वगैरह सब कुछ डिजाइन किया हुआ ऑटोमेटिकली, साइकिट लर्न। नंबर टू टेंसरफ्लो, एंड नंबर थ्री इज केरस। टेंसरफ्लो केरस हम अभी नहीं करेंगे, दिस इज फॉर पार्ट टू, लेवल टू, यू कैन से लेवल टू ऑफ ट्रेनिंग में हम यूज करेंगे ये सारे। अभी हम लोग इन लेवल वन में क्या करेंगे, साइकिट लर्न यूज करेंगे, ओके। पाइथन का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, व्हाई, बिकॉज इट इज हाई लेवल, इट इज ऑब्जेक्ट, पाइथन का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, पाइथन किस लिए, एक है इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नंबर थ्री बिगिनर फ्रेंडली, number four, data handling is simpler here.
इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथन की यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे एक दो बातें। जैसे पाइथन की आप प्रोग्रामिंग करोगे तो पाइथन का प्रोग्रामिंग कहाँ करोगे, तो उसके लिए बहुत सारा आईडीज होते हैं। ओके, जुपिटर नेटबुक होते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू विथ गो विद दैट, बिकॉज ये आप लोग का क्या है, आप मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव योर लैपटॉप्स। ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट आईडीज। ओके, पाइथन बहुत जगह हम कर सकते हैं, तो विल बी डूइंग इन गूगल कोलैब। गूगल कोलैब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हो, एंड इजीली आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, बट इट हैज सम लिमिटेशंस आल्सो। ओके, वी कैन नॉट रन हेवी, बट बाद में इन फ्यूचर ना वी कैन नॉट रन हेवी प्रोग्राम्स ओवर देयर, हेवी प्रोजेक्ट्स वी कैन नॉट डू। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट आईडीज। तो आईडीज के बारे में हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग सिर्फ गूगल कोलैब ही यूज करेंगे यहाँ पे। कीप इन माइंड, गूगल कोलैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप पैंडास किस लिए यूज होते हैं, टू हैंडल लार्ज डेटा सेट्स। ओके, अब मैटप्लॉटलिब किस लिए यूज करते हैं, फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ये सब दिमाग में आप लोग को डाल लो। ठीक है, टेंसर फ्लो क्या है, दैट इज ऑल्सो फॉर हाई लेवल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स। ओके, पैरेलल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, ये सब चीजें, बहुत सारी बातें हैं, तो वो हमें अभी जरूरत नहीं है। ओके, अब डेटा टाइप्स क्या क्या हमारे यूज होंगे। डेटा टाइप्स, एक हो गया न्यूमेरिकल, एक हो गया कैटेगरिकल। बार बार यही बात करें, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल की। एक हो गया टाइम सीरीज, और एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। न्यूमेरिकल में क्या क्या है, एक होता कंटिन्यूअस, एक होता डिस्क्रीट। ओके, और कैटेगरी में क्या है, एक होता नॉमिनल, एक होता ऑर्डिनल। उसके बाद अनस्ट्रक्चर, टाइम सीरीज इज टाइम सीरीज, इसमें कुछ पार्ट्स नहीं है। अनस्ट्रक्चर में क्या, टेक्स्ट, इमेजेस, और एक होता है इमेज और ऑडियो और वीडियो। ओके, अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, एंड डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग का डाउट हो रहा है। कंटिन्यूअस मतलब 1 2 3 4 करके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, दैट इज कंटिन्यूअस। जैसे टेम्परेचर या वेदर ऑफ एनी प्लेस, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट डिफाइन इट, इट कैन बी थाउजेंड्स। ओके, या इट कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे 1 to 5, 1 to 5 के बीच में मूवी रेटिंग्स देना है। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या हो गया, दीज आर ऑल डिस्क्रीट। ओके, 1 to 5 के रेंज में ही है। एग्जाम्पल ले लो, यू आर टॉसिंग ए क्वाइन, द हेड एंड टेल दोनों होंगे, दोनों कोई भी एक हो सकते हैं, तो दिस इज डिस्क्रीट, हेड या टेल दोनों होंगे। ओके, दोनों में कोई भी एक होंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में वेदर ऑफ एनी प्लेस, कंटिन्यूस। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। कैटेगरी में क्या है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या हो गया, नॉमिनल में हो गया मेल फीमेल, इसमें कोई बस मेल फीमेल हो गया, यस नो हो गया, कोई प्लेसेस हो गया, सपोज दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, इस तरह के। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर होंगे। किस तरह के ऑर्डर होंगे, जैसे ऑर्डर आप बोल सकते हो क्वालिफिकेशन, जैसे ट्वेल्थ के बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, उसके बाद क्या होंगे, पीएचडी, डॉक्टरेट। ओके, तो एक ऑर्डर हो गया ना, बट दैट इज ऑल्सो कैटेगरिकल वैल्यू, तो वो हो गया ऑर्डिनल। और टाइम सीरीज मतलब क्या होता है, जो टाइम सीरीज हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जैसे ट्रेंड्स को देखने के लिए। जे एक कंपनी है, वो 10 साल से बहुत प्रॉपर प्रॉफिट कर रहा है, अब नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, तो 10 साल का ट्रेंड को देख के हम डिफाइन करेंगे जे अगले साल वो कितनी प्रॉफिट करेगा। हाँ, तो दैट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, इमेजेस आएगा, ऑडियो और वीडियो। टेक्स्ट कुछ भी हो सकते हैं, इमेजेस, ठीक है, ऑडियो और वीडियो। तो इसके लिए हम लोग डीप लर्निंग यूज करेंगे। ओके, डोंट वरी, डीप लर्निंग यूज करेंगे, और ये सारे के लिए हम लोग मशीन लर्निंग यूज करेंगे। ओके, तो दीज आर द थिंग्स, तो ये भी आप लोग को आना चाहिए। ओके, नाउ बेसिक स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बेसिक स्टेप्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द डेटा। तो गेट डेटा हो गया एक, ठीक है, जो मैंने आपको मशीन लर्निंग पाइपलाइन में भी बताया था। फर्स्ट यू टू गेट द डेटा, देन प्रोसेस योर डेटा। डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा रैंगलिंग भी बोलते हैं उसको। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज भी होते हैं, बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज होते हैं। अब मिसिंग डेटा में मिसिंग वैल्यूज हो ही सकते हैं, टाइपिंग एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी भी हो सकता है, आउटलायर भी हो सकते हैं। अब यह आउटलायर क्या है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। आउटलायर जैसे ले लो एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो क्या हो सकता है, 15 हो सकता, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, क्योंकि पहले भी बच्चे एडमिशन लेते थे बचपन में भी, 14, 15, 16, 17, दैट कैन बी, दैट these ages can be considered in class 10th, okay, but if a person is having age 34 or 40 and he is in class 10th, तो क्या हो गया, वो एक आउटलायर हो गया, ठीक है, उसको आउटलायर बोलते हैं, ओके। ओके, नाउ इसके बाद क्या, इफ कैटेगरिकल चेक फॉर क्लास इम्बैलेंसेस। अब क्लास इम्बैलेंस क्या होता है, मल्टीकोलिनिटी क्या होता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे शॉर्ट आउट करने के बाद, ये सारे बातें करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मॉडल किस तरह की, यस्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड। यदि न्यूमेरिकल है, आउटपुट न्यूमेरिकल है, तो हम क्या करेंगे, हम रिग्रेशन यूज करेंगे। और आउटपुट यदि कैटेगरिकल है, कैटेगरिकल, ठीक है, तो व्हाट विल वी विल बी यूजिंग क्लासिफिकेशन मॉडल्स, ओके। तो वी हैव टू डील विद द मॉडल्स। अब मॉडल्स, मॉडल्स भी, तो क्लासिफिकेशन मॉडल्स भी बहुत सारे हैं और रिग्रेशन मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। तो आप बोलोगे जो मीन्स व्हिच मॉडल टू यूज इन अ पर्टिकुलर डेटा सेट, वो हमें नहीं पता होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज ईच एंड एवरी मॉडल एंड वी हैव टू इवेल्युएट दैट मॉडल। जो मॉडल का परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी कितने हैं, 88%, 90%, 99%, वो हम चेक करेंगे अलग अलग मॉडल्स को लेके। जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होगा उसी मॉडल को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद इवेल्युएट करेंगे सारे मॉडल को, जैसे मैंने अभी बात की है। उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे, ओके। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ओके। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को लेके पूरा ट्रेनिंग है हमारा एक्चुअली। लेकिन ये भी बहुत सारा है, इसको जब आप ये करोगे, अनफोल्ड करोगे, तो लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू प्ले। लेट्स गो। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्वड इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। एक है हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीटिंग रोज और कॉलम्स विथ मिसिंग वैल्यूज। यदि आपका मिसिंग वैल्यूज बहुत सारा बहुत ज्यादा है, एक जैसे रो है, उस रो में एक बंदा है राम, ठीक है, उसकी बहुत सारा क्या है, बहुत सारा डेटा क्या है, मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, उसको मोर देन 50% यदि डेटा मिसिंग है, तो उस रो को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। एक कॉलम है, उस कॉलम में मोर देन 50% ऑफ द डेटा इज मिसिंग, तो क्या करेंगे, उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। कीप इन माइंड, ओके। और यदि लेस देन 50% हम क्या करेंगे, इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। हम इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज मतलब मिसिंग वैल्यूज के जगह पे हम कुछ वैल्यू डालेंगे, ठीक है। यार इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल के लिए भी हम मिसिंग वैल्यूज के मिसिंग वैल्यूज की जगह हम कोई डेटा डालेंगे, कुछ इनपुट डालेंगे, ओके। तो दैट इज नोन एज इंप्यूटिंग। होप आई एम क्लियर। आप किस तरह का मिसिंग वैल्यूज डालेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट टाइप ऑफ मिसिंग वैल्यूज वी आर गोइंग टू एंटर, ओके। तो उसके लिए तीन चीजें हैं, आई एम टेलिंग यू। वन इज मीन, वन इज मीडियन, वन इज मोड। तो मीन कहाँ पे यूज होंगे, प्रेफर होंगे, अब मीडियन कहाँ पे यूज होंगे, दैट इज ऑल्सो द थिंग। मीन कहाँ पे यूज होंगे, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। इट इज प्रेफर्ड व्हेन द डेटा इज न्यूमेरिक एंड नॉट स्क्यूड। नॉट स्क्यूड मतलब क्या, स्क्यू क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस करें। एक शीट ले लेते हैं। ये डेटा नॉर्मल है, दिस इज नॉट स्क्यूड, ओके। स्क्यूड डेटा कैसे होते हैं, नॉर्मल, नॉट स्क्यूड। हाँ, तो इस तरह का जब डेटा होगा जो स्क्यूड नहीं है, इस तरह का फॉर्म है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। हम अपने अपने एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वी आर, व्हेन वी आर बॉर्न, वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी होंगे, उसके साथ बड़े होते होते ताकत भी होंगे। एक वक्त में ताकत इतने में पहुंच गए, एनर्जी पावर, एक एक बड़े बंदे का पावर बहुत होता है, इतने तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, पावर गोज डाउन, ओके। तो इस तरह के, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बचपन, बचपन में पावर कम होते हैं, ताकत कम होते हैं।
उसके बाद आस्ते आस्ते पावर क्या होता है, बड़े होते होते उसके पावर बढ़ते रहते हैं, और एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, पावर आस्ते आस्ते कम होते रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, तो दिस इज इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड इट इज नॉट स्क्यूड। तो इस तरह का डेटा यदि मिले तो दैट यू यूज मीन। ओके, लेकिन यदि स्क्यूड है, स्क्यूड क्या होता है, लेट्स सी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन फास्ट नहीं बोलूंगा तो नहीं भी कंप्लीट ही नहीं होंगे। दिस वन इज राइट स्क्यूड। यदि डेटा इस शेप में ले ले तो उसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यूड। बस ये छोटे छोटे बातें याद रखो, लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं। तो इस तरह का डेटा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग मीडियन। मैं ज्यादा मैथ्स में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मीन क्या होता है, मीन होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एग्जाम्पल ले लो, 10 20 30 40, ले लिए। तो सम कितना हो गया, 10, मीन इक्वल टू 10 + 20 + 30 + 40। इसलिए कर रहा हूँ सर, और कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। तो 40 + 30 70 + 20 90 + 10 100, 100/4 कितना होता है, 25। तो मीन हो गया 25। अब एक ले लो, 10 20 30 40 50, ऐसे ले लिया। अब इसे बोलेंगे मीडियन कौन सा है, मीडियन मंथ का क्या होता है, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू क्या हो गया, 30। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया। अब मोड क्या होता है, दैट इज ऑल्सो एक क्वेश्चन। मैं छोटे छोटे मैथ्स कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। मोड, व्हाट इज मोड, माने मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, उसको बोलते हैं मोड। अब क्या होते हैं, जैसे 10 20 10 30 40 10, ऐसे। आप देखो यहाँ पे 10 क्या है, मैक्सिमम है ना, 1 2 3, 3/10 है। तो क्या हो गया, मोड इक्वल टू कितना हो गया, 10। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो हम मोड कहाँ पे यूज करेंगे, जब कैटेगरिकल की बात होगी ना, कैटेगरिकल, तब मोड यूज करेंगे। हम देखेंगे यस या मेल या फीमेल, जो या सोच लो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज है, ठीक है। तो दिल्ली बॉम्बे ऐसे करके रिपीट जब हो रहा है, जो ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसी को हम इंप्यूट कर देंगे, उस वैल्यू को हम इंप्यूट करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ मिसिंग वैल्यूज। होप आई एम क्लियर। वो हम आप लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू, तो प्रोजेक्ट में हम लोग इसको बातें करेंगे, इसकी 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 कैसे कोडिंग होगा, क्या होगा, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, तो मिनी मीडियन मोड भी समझ में आ गया। अब हाउ टू डील विथ क्लास इम्बैलेंस। अब क्लास इम्बैलेंस क्या होते हैं, क्लास इम्बैलेंस, दैट इज ऑल्सो द थिंग, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट क्लास इम्बैलेंस। तो क्लास इम्बैलेंस वो होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ओके, जो सबके पास क्रेडिट कार्ड है, एक बंदे ने फ्रॉड किया, ठीक है। अब बाकी सारे तो माने मैक्सिमम बंदे तो क्या होता है, ऑनेस्ट होते हैं। एक बंदे ने फ्रॉड किया, ठीक है, एक बंदे ने फ्रॉड किया तो क्या होगा, वो एक का, और बहुत सारे ऑनेस्ट है, दिस इज ऑनेस्ट एंड दिस इज डिसऑनेस्ट, ऐसे है, डिसऑनेस्ट। तो क्या हो गया, ये क्लास इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितनी सारे डेटा है देखो, और यहाँ पे कितनी कम डेटा है, तो इसको बोलते हैं क्लास इम्बैलेंस। व्हेन ऑब्जर्वेशन इन वन क्लास इज हायर देन द ऑब्जर्वेशन इन अदर क्लास, देन देयर एग्जिस्ट ए क्लास इम्बैलेंस। ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ज्यादा जब ये हो, तो तभी तो क्लास इम्बैलेंस हो रहे। तो उसको इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, क्लास इम्बैलेंस अपीयर में फ्रॉड डिटेक्शन, एक होता है स्पैम फिल्टरिंग, एक होता है डिजीज स्क्रीनिंग, या तो एडवर्टाइजिंग क्लिक थ्रूज। अब डिजीज स्क्रीनिंग क्या होता है, जैसे आप लोग का टेस्ट लिया जाता है, जब बीमार होते हैं तो टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में जरूरी नहीं कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा, टेस्ट में नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव भी ज्यादा लोग होते हैं जब टेस्ट किया जाता है। अब ये आप यू डू नॉट, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट कोविड 19,
कोविड 19 वॉज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे जब जाते हो, कुछ बीमारी होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करते हो, टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट में नेगेटिव आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दूसरा टाइप का कोई और मेडिसिन लिख देते हैं। तो दिस थिंग्स, तो डिजीज स्क्रीनिंग इज ऑल्सो क्लास इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है, डिजीज नहीं होते हैं वो ज्यादा लोग होते हैं, और डिजीज होते हैं वो कम होते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में टेस्ट होते हैं, उसका क्या, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होते वो ज्यादा होते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लास इम्बैलेंस हो गया। इस तरह का यदि कुछ बातें हो, ठीक है। तो हाउ टू डील विथ क्लास इम्बैलेंस, उसमें क्या था, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, स्मॉट, नियर मिस, यूज ट्री बेस्ड एल्गोरिथम, ये सारे टेक्निक्स है। दिस आर द टेक्निक्स। ओके। अंडर सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, जिसकी ज्यादा डेटा है, जिसकी ज्यादा ज्यादा डेटा है, उस डेटा को क्या करेंगे हम, कट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट करके हम छोटे करेंगे। तो दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, अंडर सैम्पलिंग। होप आई एम क्लियर। ओके। तो आपको समझ में आ गया अंडर सैम्पलिंग क्या होता है। जो मेजोरिटी ऑफ द क्लास है उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अंडर सैम्पलिंग। और ओवर सैम्पलिंग क्या होता है, जो माइनॉरिटी क्लास है उसको ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो विथ विथ क्या करेंगे, विथ 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 डेटा, वो डेटा हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग। होप आई एम क्लियर। अब स्मॉट, स्मॉट क्या है, सिंथेटिक, माइनॉरिटी, ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। ये जो मैंने अंडर सैम्पलिंग की बात की, ये सिंथेटिक माइनॉरिटी, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, हम अपने से डेटा क्रिएट करेंगे। दैट इज फॉल्स डेटा, ये एक्चुअल नहीं है। ओके, डाटा क्रिएट करेंगे। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जिसकी जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। ओवर सैम्पलिंग, उसको सैम्पल, उसमें ज्यादा डेटा देंगे, तो दैट इज अ सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा डेटा ऐड करते हैं, सो दैट विच क्या होता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी जब तक सेम ना हो जाए, हम क्या करें, डेटा ऐड करते रहे थे। तो दैट इज नोन एज स्मॉट। ओके, होप आई एम क्लियर। That is also that is also a undersampling technique only, smart you can say। नियर भी सब छोड़ दो, यूज ट्री बेस्ड एल्गोरिथम, ये दोनों छोड़ दो, ये जरूरत नहीं है अभी। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में विथ एग्जांपल्स, तो लीव दैट पार्ट। ओके। अब एक मल्टी कोलिनेटर, बार बार मल्टी कोलिनेटर की बात हो रही है। मल्टी कोलिनेटर होता क्या है, जब दो, टू और मोर इंडिपेंडेंट कॉलम्स, यू कैन से, कॉलम्स आर हाईली कोरिलेटेड विथ वन अनदर। कोरिलेटेड मतलब क्या होते हैं, जैसे जैसे ए और बी दो कॉलम है, ओके। ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो बी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ए का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो बी का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। ए और बी, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, दे आर स्टार्टिंग हार्ड, तो क्या हो रहा है, वो दोनों का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ए एंड बी आर नॉट स्टार्टिंग, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, डाउन हो रहे हैं। तो दिस, इसको क्या बोलते हैं, हाईली कोरिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जरूरत नहीं है हमें, एक ही कॉलम ए या बी किसी में, किसी को भी ले लो, तो my work will be done. We do not need both, yeah, both A and B. Okay, so that is known as a correlation, highly correlated। क्या होते हैं, यदि ए बढ़ रहा तो बी भी बढ़ रहे, ए गिर रहे तो बी भी डाउन हो रहे, तो दैट इज नोन एज ए कोरिलेशन। तो हाई कोरिलेशन बोलते हैं उसको। तो वी डू नॉट नीड ऑल दो थिंग्स, ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉप वन ऑफ द कॉलम्स। ओके, तो दैट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाइट एंड वेट, स्टूडेंट कंजम्पशन एंड फादर इनकम, ठीक है। स्टूडेंट को पॉकेट मनी ज्यादा मिलेगा कब, जब फादर की इनकम ज्यादा होगा। तो क्या होगा, फादर की इनकम को हटा दो, स्टूडेंट के जो स्टूडेंट जो ये कर रहे पॉकेट मनी ज्यादा मिल रहा है, तो उसी से काम बन जाएगा, उसी से हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एज एंड एक्सपीरियंस, माइलेज एंड प्राइस ऑफ ए कार, एटसेट्रा। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। ओके, जैसे माइलेज, माइलेज ज्यादा है, माइलेज ज्यादा चाहिए, तो प्राइस ऑफ ए कार विल ऑल्सो, प्राइस ऑफ ए कार विल इंक्रीज। ओके। और एज एंड एक्सपीरियंस, एज ज्यादा, एज के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस को रख सकते हो या एज, यदि आप एज को हटा दो, एक्सपीरियंस को रखो, तो एक्सपीरियंस हमें पता चल जाएगा जब बहुत सारे एक्सपीरियंस है मतलब बहुत ज्यादा एज है। ओके, तो इन दैट वे, तो मल्टीकोलिनिटी। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके हम डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कॉलम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें क्या, कॉलम्स को भी रिड्यूस करना होता है, so that the performance of the model can be, yeah, improved। That's the thing। Okay,
Then comes the model evaluation. So here we'll be dealing with mathematics. So let's go to the mathematics. Now let's start model evaluation. It is a bit mathematical. You have to understand. मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं. मॉडल इवेल्युएशन, इसमें कुछ टर्म्स है दैट यू शुड नो. नंबर वन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स. नंबर टू, फॉल्स पॉजिटिव रेट. नंबर थ्री, फॉल्स नेगेटिव रेट. नंबर फोर, रिकॉल. नंबर फाइव, प्रिसिशन. नंबर सिक्स, accuracy. And number seven, F beta score. So we'll be discussing all these things one by one. Okay. ये जो फॉल्स पॉजिटिव रेट, इसको टाइप वन एरर भी बोलते हैं, और इसको फॉल्स नेगेटिव रेट को टाइप टू एरर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, व्हाट इज दिस क्लास कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली? ये जो हम मॉडल इवोल्यूशन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ये दिमाग में रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ओके, अब एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में बात करें. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब आउटपुट क्या है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मीन्स आउटपुट क्या होंगे? आउटपुट विल बी नॉट द न्यूमेरिक डेटा, इट विल बी नॉट द न्यूमेरिक डेटा. तो क्या कौन सा डेटा होंगे आप लोग के? कैन यू प्लीज टेल? नॉट द न्यूमेरिक डेटा. It should be, output should be categorical. Okay, now let's start with the confusion matrix. कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक्चुअल, यहाँ पे एक्चुअल लिखो, यहाँ पे लिखो 1 0, यहाँ पे 1 0, ये प्रेडिक्टेड, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव. हमने एक्चुअल में प्रेडिक्ट किया था 1 और प्रेडिक्टेड भी 1, तो ट्रू पॉजिटिव. ये फॉल्स पॉजिटिव. ओके, ये फॉल्स नेगेटिव, ये ट्रू नेगेटिव. अब क्या हुआ? मैंने एक्चुअल बोला था फॉल्स और प्रेडिक्टेड 1 हो गया, तो क्या हो गया? फॉल्स पॉजिटिव हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज टाइप 1 एरर. ये कहाँ यूज होते हैं? स्पैम डिटेक्शन. स्पैम डिटेक्शन में हम फॉल्स पॉजिटिव रेट यूज करते हैं, और ये फॉल्स नेगेटिव और नेगेटिव आउटपुट आया, बट दैट इज एक्चुअली फॉल्स. तो ये क्या है? टाइप 2 एरर. डिटेक्टिंग whether a person has cancer or not. वहां हम फॉल्स नेगेटिव यूज करते हैं. होप आई एम क्लियर. तो ये तो क्लियर है. अब फॉल्स पॉजिटिव से क्या आते हैं? फॉल्स पॉजिटिव से फॉल्स पॉजिटिव रेट आते हैं. फॉल्स पॉजिटिव रेट, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉल्स पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. फॉर्मूला है फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. ओके, और ये जो है फॉल्स नेगेटिव से फॉल्स नेगेटिव रेट आता है, FNR. फॉल्स नेगेटिव, तो क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये फार्मूला है. ये सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा.
ठीक है। अब क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है वो दो टाइप होता है, बैलेंस्ड एक इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इफ द पावर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, if the problem is balanced, we use accuracy। accuracy, तो accuracy का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव, ये वाला ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल जितनी वैल्यू है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। आप ये लिख दो, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये सारे आ गए। ओके। और इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिकॉल एंड प्रिसिजन। रिकॉल एंड प्रिसिजन जो है इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए, इम्बैलेंस्ड डेटा सेट के लिए यूज करेंगे। फॉर इम्बैलेंस डेटा सेट, we use precision and recall। ओके। आप प्रिसिशन एंड रिकॉल का फॉर्मूला क्या है? रिकॉल का फॉर्मूला लिखिए आप। रिकॉल, पहले प्रिसिशन लिखते हैं। प्रिसिशन इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये जो प्रिसिशन है इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोडक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। पॉजिटिव प्रोडक्शन वैल्यू। ओके, ये आपको याद रखना है। और रिकॉल को क्या बोलते हैं? लेट्स गो टू रिकॉल। रिकॉल इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव, तो इसके स्पैम डिटेक्शन, कैन यू सी ट्रू पॉजिटिव स्पैम डिटेक्शन, तो ये एक्चुअली स्पैम डिटेक्शन के लिए ही यूज करेंगे, स्पैम डिटेक्शन। और यहाँ पे देखो ट्रू नेगेटिव है ना, ट्रू फॉल्स नेगेटिव, तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? डिटेक्टिंग वेदर पर्सन हैज कैंसर और नॉट। तो रिकॉल किस लिए? कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे, कैंसर डिटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और ये जो है रिकॉल को क्या बोलते हैं? ट्रू पॉजिटिव रेट और सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू पॉजिटिव रेट, टीपीआर, और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। टीपीआर मतलब क्या था? ट्रू पॉजिटिव रेट, आप लोग लिख लेंगे। हाँ। अब हम लोग को यदि प्रिसिशन और रिकॉल दोनों ही चाहिए, देन वी हैव टू यूज बीटा स्कोर, ए बीटा स्कोर। इफ both the precision and recall are equally important, then we use f beta score। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? f beta equal to 1 plus beta square into precision into recall upon beta square into precision plus recall। Let me take one more sheet। होप आई एम करेक्ट। ठीक है, अब हियर यू सिलेक्ट। अब यहाँ पे बीटा का वैल्यू हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वन सेक।
लिख क्यों नहीं रहा? एक सेकंड रुकिए, पेन में थोड़ा इशू आ रहा है। अब हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट बीटा वैल्यू। वी हैव टू सिलेक्ट बीटा वैल्यू। इफ बीटा बीटा इक्वल टू यदि 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, F1 स्कोर। इफ बीटा इक्वल टू 0.5 विच इज लेस देन 1 तो उसको क्या बोलते हैं, F0.5 स्कोर। सबकी मीनिंग है। बीटा इक्वल टू 2 तो क्या होंगे, F2 स्कोर। बीटा का कुछ ही वैल्यू हो सकते हैं। ओके, तो बीटा इक्वल टू 1 जब होते हैं, ये दिमाग में आप लोग रखो, बीटा इक्वल टू 1 इज यूज्ड, बीटा इक्वल टू 1 is used when both false positive and false negative are equally important. ओके, अब चलो बीटा इक्वल टू 1 लेके देखता हूँ तो क्या होगा, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू प्रेसिशन इंटू रिकॉल, फॉर्मूला में डाल रहा हूँ, प्रेसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिशन प्लस रिकॉल, 1 स्क्वायर इंटू प्रेसिशन प्लस रिकॉल। तो क्या हो गया, 2 इंटू प्रेसिशन, 2 प्रेसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिशन प्लस रिकॉल। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये कैन यू रिमेम्बर, दिस इज अ हार्मोनिक मीन फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन हम लोग जो सीरीज किया था इसमें हार्मोनिक मीन बोल के भी गया था, एडिनिट प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जब दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो फिर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज बीटा इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है, और भी डिटेल में है, डिटेल में ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, जाने से यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉडल इवेल्युएशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली विल बी गोइंग विद मोर डिटेल्ड इन मॉडल इवेल्युएशन। ओके, तो इतने आप लोग थोड़ा सा समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखो, और कुछ भी डाउट हो तो फिर मेल मी, विल बी सॉल्विंग इट आउट। ओके, तो उसके बाद हम लोग अभी, इसके बाद हम लोग पैंडल्स में जाएंगे, और पैंडल्स की प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, उसके बाद नमपाई भी करेंगे। ओके, तो प्लीज नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैंडल्स। ओके, तो व्हाट इज पैंडल्स? Okay, pandas is a Python library used for working with data sets. Data set क्या होते हैं? It is a it consists of rows and columns. It is in the matrix form. उसको बोलते हैं data set. Okay, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, pandas को use करेंगे. It is a Python library. Okay, it has functions for analyzing, cleaning, exploring and manipulating data. डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डेटा को। Okay, and why we are using pandas? Because it is used to analyze big data and make conclusion based on statistical theories. हमारा statistics जो मैथमेटिक्स है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड पे हम सारे काम कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो वट एवर वी हैव स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स एंड यू मे नॉट हैव स्टडीड, तो हमारे क्या होता है, फंक्शंस है, पाइथन के स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस है, वो फंक्शंस की यूज करके हम कर सकते हैं। ओके, या हम काम कर सकते हैं। पैंडास कैन क्लीन मेसी डेटा सेट्स एंड मेक देम रीडेबल एंड रेलिवेंट। मेसी जो टेढ़ा बेड़ा जो डेटा सेट हमने अभी डिस्कस किए, इम्बैलेंस डेटा सेट हो, या मिसिंग वैल्यूज हो, या डेटा वैलिडेशन में इश्यूज हो, तो वो सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं यूजिंग पैंडास। तो पैंडास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस। Okay, and why it is important, because we need relevant data, and relevant data can be created using pandas. That's why it is very important. Okay, so what pandas can do, yeah, I can give you the answers about the data. वो बहुत कुछ आंसर्स दे सकता है आपके डेटा के बारे में। What is the average value, what is the maximum minimum value, is there a correlation between two or more columns? Okay, pandas are also able to create delete rows that are not relevant, और contains wrong values like empty or null value. This is called cleaning the data. तो इस तरह का बहुत सारी बातें बहुत सारे these are the functions that pandas can do. The pandas is not a small thing.
ओके, तो pandas इज अ वेरी बिग थिंग। तो these आर द फंक्शंस। ये तो मैंने छोटे मोटे शॉर्ट, इन शॉर्ट आई टोल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल थिंग। नाउ अब प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे, आई एम टेलिंग यू। हम क्या करेंगे, पहले हम कोड को, व्हाट आई डिड, मैंने कोड को सारे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए। आई आई हैव ऑलरेडी रिटन दोज कोड्स, ओके। अब पहले मैंने उसको कोड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। अब पीडीएफ में उस कोड को सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद क्या करेंगे, आप वो कोड को कैसे रन करना, क्या करना, वो सारे बातें हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम पहले कोई भी एक ब्राउजर खोलेंगे। उस ब्राउजर में पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वी आर गोइंग टू चेक फॉर गूगल कोलैब। वो सारे स्टेप्स में देखेंगे प्रैक्टिकली, ओके। फिर गूगल कोलैब में खोल के जो ये जो फाइल है, ये तो पीडीएफ फाइल है। एक पाइथन नोटबुक फाइल भी मेरे पास है। उसको अपलोड करेंगे। और फिर एक कमांड को रन करके हम चेक करेंगे इज इट वर्किंग और नॉट, ओके। लेकिन पहले क्या करेंगे, एक एक कमांड की मीनिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ओके। So it's a very big thing. तो let's start. Okay. हम्म तो pandas में क्या है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। कुछ लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे। ऐसे जैसे नमपाई, नमपाई तो हमने पढ़ी ही नहीं है। बस आप उसको लिख के रखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नमपाई क्या है, अभी नमपाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डो नॉट वरी अबाउट इट। वन सेक। ओके। तो क्या हो गया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। हमेशा ही एनपी एनपी नमपाई एज एनपी, क्योंकि नमपाई बड़ा नाम है। तो एनपी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, एलियास यू कैन से। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, पैंडास को हम पीडी लेते हैं, हमेशा ही लेते हैं। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सीरीज। अब सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, तो यूजिंग लिस्ट। लिस्ट से हम कर सकते हैं, डिक्शनरी कर सकते हैं, सेट से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से। तो हम सिंपल लिस्ट यूज किए। हेडिंग इक्वल टू एबीसी कर दिए। एबीसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एबीसी लिख दिया। लिस्ट इक्वल टू क्या किया, 11 22 33। एरे वन इक्वल टू एनपी डॉट एरे लिस्ट वन। लिस्ट वन को हमने एरे बना दिए। ठीक है। डिक्ट वन A11 B22 C33, माने ए का वैल्यू 11 है, बी का वैल्यू 22 है, सी का वैल्यू 33 है। इसको बोलते हैं डिक्शनरी। माने क्या होता है डिक्शनरी में, जैसे क्या करते हैं, व्हाट वी डू, जैसे डिक्शनरी में एक वर्ड है, ओके। एक वर्ड है, उसका हम क्या करते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं। तो क्या हो गया, तो ए का मीनिंग है 11, बी का मीनिंग है 22, सी का मीनिंग है 33। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, ओके। तो दिस इज द थिंग, ओके। उसके बाद हेडिंग्स बनाते लिस्ट, ये सारी चीजें तो हमने कर लिया। उसके बाद हेडिंग्स जैसे लिख के एंटर करोगे तो यू विल गेट दिस आउटपुट। दिस इज द आउटपुट एक्चुअली, दिस इज द आउटपुट। हेडिंग्स लिखोगे तो आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद लिस्ट वन लिख के लिख दोगे खाली, तो 11 22 33 हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, डो नॉट वरी अबाउट इट। एरे वन लिख दोगे तो क्या आएगा, ये सारे एरे आ जाएगा, ये वैल्यू 11 22 33 ये। डिक्ट वन करेंगे तो क्या करे आएगा, A11 B22 C33, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, सीरीज बनाने। सीरीज, तो पीडी डॉट सीरीज और डेटा इक्वल टू लिस्ट वन ले लिए। पीडी डॉट सीरीज कर दिए और डेटा इक्वल टू लिस्ट वन, ये वाला लिस्ट ले लिए। तो क्या हो गया, तो 11 22 33 ऑटोमेटिकली आ गया, एक सीरीज बन गए। और ये क्या है, दिस इज द इंडेक्स, ओके। ओके, दिस इज थिंग। तो पीडी डॉट सीरीज एरे वन, एरे वन को जब ले लो, एरे वन क्या है, यहाँ पे। तो क्या हो गया, 11 22 33 है, तो 11 वही सेम चीज आ गया, 11 22 33। ठीक है। और 0 1 2 एरे, एरे में कन्वर्ट किया तो ये डेटा टाइप क्या हो गया, 32 हो गया इंट। और जब पीडी डॉट डायरेक्ट कर दी तो क्या हो गया, इंटीजर 64 हो गया। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप पीडी डॉट सीरीज डिक्ट वन, डिक्ट वन करोगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू 11 है, बी का वैल्यू 22, सी का वैल्यू 33। तो ऐसे ही आएगा, A11 B22 C33। तो ये क्या हो गया, ये इसके इंडेक्स हो गए, ओके। एंड दिस इज द मीनिंग, क्लियर। अब पीडी डॉट सीरीज हेडिंग्स, हेडिंग्स में क्या था, हेडिंग्स में व्हाट वाज देयर, एबीसी। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एबीसी आ गया, ये देखो एबीसी। और इसका इसका इंडेक्स क्या हो गया, दिस वन इज द इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2। आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा कस्टमाइज करें, कैसे, पीडी डॉट सीरीज, सीरीज बनाने, डेटा इक्वल टू लिस्ट वन, डेटा इक्वल टू लिस्ट वन। लिस्ट वन में क्या है, 11 22 33, तो ये डेटा हो गया। और इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दिया, हेडिंग्स कर दिए। इंडेक्स में क्या दे दिए, हेडिंग्स दे दिए। तो हेड तो क्या हो गया, हेडिंग्स में क्या है, एबीसी। तो देखो इंडेक्स क्या हो गया, दिस वन इज द इंडेक्स। और डेटा क्या हो गया, लिस्ट वन। तो लिस्ट वन, दिस वन इज द डेटा। होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, डो नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद क्या है, ऑप्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीरीज। अब इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए सीरीज की, ठीक है। तो सीरीज वन इक्वल टू पी, अब यहाँ पे सीरीज मैंने बनाए हुए, सीरीज वन इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट पे डिक्ट वन, डिक्ट वन को पास कर दिया। तो क्या हो गया, सीरीज वन में क्या हो गया, ये सारे वैल्यूज आ गए ऑटोमेटिकली, ओके। अब सीरीज वन के मुझे ए का वैल्यू चाहिए,
तो ब्रैकेट में ए लिख दो, यू विल गेट 11। ओके, ये सारे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप लोग शॉर्ट में देख लो ऐसे करके। अब हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, कुछ ऑपरेशनल सीरीज। आप डिक टू में क्या कर दे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का डी का वैल्यू 3, ऐसे कर दे डिक टू। एक एक मैंने दूसरा डिक्शनरी लिया है। अब सीरीज टू इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डिक टू। अब उसके बाद सीरीज टू देखेंगे तो क्या होगा, ए बी डी आएगा और 1 2 3 आएगा, ये तो सी ठीक है। अब सीरीज वन क्या है, ए बी सी 11 22 33। ओके, ये दो सीरीज है, दो सीरीज है। Where there is a match, the operation is performed. When no match, null values is returned. Okay, suppose ये दोनों सीरीज को मुझे ज्वाइन करना है, दोनों सीरीज को ज्वाइन करना है, तो जहां पे मैच मिलेगा, ठीक है, तो ऑपरेशन होगा, जहां पे मैच मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, नल वैल्यू होंगे। जैसे सीरीज वन प्लस सीरीज टू, ठीक है, तो सीरीज वन प्लस सीरीज टू करोगे तो ए तो आ गया, 11 प्लस वन कितना होता है 12। देखो 11 प्लस वन 12 आ गया। बी का वैल्यू कितना 22, और यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू 2, तो 22 प्लस 2 24। सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पे 33 है, यहाँ पे सी नहीं है, नो सी ओवर हियर, तो क्या हो गया, सी क्या हो गया, 9 हो गया, और डी का वैल्यू भी 9 हो गया। होप आई एम क्लियर। तो इस तरीके की बात है, ठीक है। तो ये सारे पैंडल्स की कॉन्सेप्ट है, ये हमने जो व्हाट इन द पार्ट वन, इन द पार्ट वन नॉट, इन द बैच वन वी डिडंट डू ऑल दिस थिंग्स, हमने शॉर्ट में किया था। ओके, because there are a lot of more things, क्योंकि Python itself was so lengthy that we didn't have time to do all these things। क्योंकि हमारा जो बैच वन था, बैच वन का जब हम लोग कर रहे थे तो फिर कभी 3 घंटे, पौने 3 घंटे भी गए हमारा ये सेशन। तो इट इज पौने 3 घंटे बहुत होते हैं, पौने 3 घंटे कभी 3 घंटे भी गए, इट्स लाइक दैट, कभी 2.5 घंटे भी गए, इट हैज गॉन लाइक दैट। तो क्या हो गया, हमारा इम्बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ पाइथन। तो पाइथन तो आप लोग वहां से कर सकते हो, हम यहाँ पे सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग जो जो चीज जरूरत है दैट वी आर डूइंग ओवर हियर। ओके, ओके, नाउ सी, अब क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे कैसे, फ्रॉम np डॉट रैंडम इम्पोर्ट आर ए एन डी एन, रैंडम वैल्यूज कुछ भी आ जाएंगे। अब डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। अब सीरीज नहीं, डेटा फ्रेम का बात करें, रैंडम थ्री टू, मतलब क्या होगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ए बी सी वाई जेड। अब क्या करेंगे, ए बी सी वाई जेड जब देंगे तो क्या होगा, 3 रोज बोल दिया इन्होंने, तो ए बी सी ऐसे हो गया, और 2 कॉलम्स वाई जेड इधर हो गया, इट विल बी लाइक दिस, अंडरस्टूड। दिस इज इन दिस फॉर्म। और यहाँ पे लेट मी राइट इट प्रॉपरली, यहाँ पे वाई जी, यहाँ पे ले लो ए बी सी, और रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स 2.3 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, -6.5 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह के रैंडम नंबर्स। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 रोज हो गए एंड 2 कॉलम्स हो गए। सी, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, तो दिस इज द वे टू राइट। होप आई एम क्लियर। ओके, अब टाइप ऑफ डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम किस तरह का डेटा फ्रेम है, पैंडल्स डेटा फ्रेम ही है। टाइप डेटा फ्रेम डाल दोगे तो वो बोलेगा जी इट इज ए पैंडल्स डेटा फ्रेम। आप डेटा फ्रेम जी, जी, जी का जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है, वहां पे कुछ और वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली शो होंगे वहां पे, ठीक है। अब टाइप डेटा फ्रेम जी, तो क्या होगा, ये भी पैंडल्स का ही सीरीज है, पैंडल्स का सीरीज, जेड जेड इज ए पैंडल्स सीरीज। एक कॉलम, एक रो होगा, एक कॉलम होगा तो सीरीज है। ओके, आप डेटा फ्रेम वाई जेड करोगे तो क्या होगा, वाई जेड का पूरा ये शो कर देंगे। आप क्रिएटिंग ए न्यू कॉलम, ओके, क्रिएटिंग ए न्यू कॉलम, तो डेटा फ्रेम न्यू कॉलम, तो हम एक न्यू कॉलम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी, यहाँ पे वाई जी, 2 कॉलम हो गए, एक न्यू कॉलम, न्यू कॉलम का नाम है न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉल। और डेटा फ्रेम वाई माइनस डेटा फ्रेम जेड, ऐसे लिख दिया। तो डेटा फ्रेम वाई और डेटा फ्रेम जेड, डेटा फ्रेम वाई माइनस डेटा फ्रेम जेड, डेटा फ्रेम वाई का जो भी वैल्यू है, डेटा फ्रेम का वैल्यू जैसे ये है, डेटा फ्रेम को वाई का आइए, ये दोनों को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा वो न्यू कॉलम में आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो 2.3 और ये 1.9 है, तो दोनों का यही तो मैंने किए है यहाँ पे, डेटा फ्रेम वाई का वैल्यू जो भी है, डेटा फ्रेम जेड का वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो न्यू कॉलम में आ जाएगा। तो 19 और 4 कितना होता है, 0.4।
उसके बाद क्या था, नेक्स्ट वैल्यू क्या था, -6.5 और 7। अब y माइनस जेड था ना, y माइनस जेड, तो -6.5 -6.7 और 7 कितना था, -13.7, वो न्यू कॉलम में आ गया। और 8 और 4 है तो क्या होगा, 8 और 4 है तो 8 माइनस 4 इज 4, तो ये न्यू कॉलम का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होंगे, तो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, ये सारे, तो हम न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। ओके, तो पैरेंटेज के थ्रू हम ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम को। जैसे हमने क्या किया, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप न्यू कॉलम और एक्सिस इक्वल टू 1। तो कॉलम ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, एक्सिस वैल्यू शुड बी 1, ये दिमाग में रखना आपको। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। when you want to drop a column, the access value should be 1। ओके, तो एक्सिस वैल्यू 1 कर दिया और न्यू कॉल कर दिया, तो न्यू कॉलम ड्रॉप हो चुके हैं। ओके, बट दिस ड्रॉप मेथड इज नॉट इन प्लेस, माने परमानेंट नहीं है। नॉट इन प्लेस मतलब नॉट परमानेंट। ओके, इफ द डेटा फ्रेम इज प्रिंटेड अगेन द ड्रॉप कॉलम विल बी सीन। जैसे आप फिर डेटा फ्रेम लिख दिए तो देखो वाई जेड न्यू कॉलम दिख रहे हैं आपको। ओके, आप उसको, आपको क्या करना है, डिलीट करना, परमानेंटली डिलीट करना है। तो परमानेंटली डिलीट क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस आर्गुमेंट शुड बी ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल ट्रू मतलब क्या है, ये परमानेंटली डिलीट करने के लिए कॉलम को। परमानेंटली डिलीट, तो परमानेंट डिलीट एक्सिस इक्वल टू 1 बोल दिया। ठीक है, मतलब कॉलम होगा, एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, कॉलम, और यहाँ पे परमानेंट डिलीट, तो क्या होगा, परमानेंट डिलीट कॉलम, तो कॉलम को परमानेंट डिलीट। उसके बाद आप देखोगे तो आपको वाई जी देखेगा, नथिंग। आप डेटा फ्रेम, आप ड्रॉपिंग रोज, रोज को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप सी, तो सी रो को मुझे ड्रॉप करना है, सी रो इज ड्रॉप्ड। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब obtaining information from rows of the data frame using LOC. LOC is the location, and ILOC is the index location. Index, okay? तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट LOC सी, सी। अब सी कहाँ है, लोकेशन किसका चाहिए, सी की चाहिए। अब ये सी कहाँ है, लेट मी सी। यहाँ पे तो रो सी है ही नहीं। हाँ, यहाँ ये चीज यहाँ से बोल रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, लोकेशन सी, लोकेशन सी का वैल्यूज क्या क्या है, डॉट एल ओ सी ब्रैकेट में सी, तो -0.5571 से ये देखिए ये आ गया, और क्या हो गया, और एक ये आ गया वैल्यू, या -0.892137, देखिए ये वाला आ गया। अंडरस्टूड। आप टाइप यदि टाइप डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी करोगे तो क्या होगा, सीरीज होगा, एक वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, दिस वन इज सीरीज एक्चुअली। और रोज और कॉलम दोनों होंगे मोर देन मोर देन वन कॉलम, तो क्या होगा, वो डेटा फ्रेम हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। आप डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक टू, आई लॉक मतलब क्या होता है, इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन टू मतलब क्या होगा, 012, ये हो गया ना, देखते हैं। तो क्या होगा, वाई जी वही वही वाली सेम वैल्यू, -0.5 एंड 892.137, वही सेम, मैंने सी, ये 012, टू का वैल्यू कौन सी है, यही वाली से है, सी वाली। तो क्या होगा, -0.557171 और -0.892121, ये यूजिंग इंडेक्स लोकेशन, दिस वन इज द इंडेक्स लोकेशन। I will be sharing this Python netbook file with you. Okay, do not worry about it. Obtaining information with combination of rows and columns. आप मुझे A का भी देखना है लोकेशन, और Z का भी लोकेशन देखना है, A और Z, A और Z, या ये वाला A है और Z कौन सी है, तो ये वाला वैल्यू दिखेंगे, A और Z दोनों का इंटरसेक्शन यही है ना, दिस वैल्यू, तो -0.492404, देखिए आ रहा कि नहीं, माइनस ए, देखो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। जैसे ए बोल दिया, ये तो ये पूरा ए है, और यहाँ पे जेड बोल दिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट डिस्प्ले होंगे, इट इज डिस्प्लेड ओवर हियर। आप डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन बी सी वाई जेड, बी सी और वाई जेड, तो क्या करेंगे, पूरा बी सी वाई जेड पूरी दिखा शो कर देंगे। ओके, आप क्या करेंगे, बूल अंडरस्कोर डीएफ डेटा फ्रेम ग्रेटर देन जीरो, बुलियन, बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, डेटा फ्रेम जो ग्रेटर देन जीरो है उसी को ये करेंगे, ट्रू दिखाएंगे, और बाकी को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो हम देखते हैं ग्रेटर देन जीरो में कौन सा है,
इसको रब करें पहले। हाँ, यहाँ पे क्या है, लेट्स गो। हाँ, ग्रेटर देन जीरो कौन कौन सा है, ग्रेटर देन जीरो, ये वाला ग्रेटर देन जीरो, ये वाला ग्रेटर, तो दोनों ट्रू होगा और बाकी सारे क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि दीज आर ऑल लेस देन जीरो। देखो दोनों ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है, दिस इज द थिंग। आप क्या करेंगे, सो नल वैल्यूज और द कंडीशन इज फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां पे नल वैल्यूज डालना। तो डेटा फ्रेम क्या है, बुल अंडरस्कोर डीएफ कर दो, बुल अंडरस्कोर अदर में बुल डीएफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू शो करेंगे, और जहां पे फॉल्स है वहां पे क्या करेंगे, नैन नैन शो करेंगे। ओके, दिस इज द थिंग। आप डेटा फ्रेम लेस देन जीरो, डेटा फ्रेम लेस देन जीरो करोगे तो क्या होगा, इधर 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 नैन हो गया, और क्या हो गया, लेस देन जीरो वाला वैल्यूज ये हो रहे हैं, आपको क्या पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं। अंडरस्टूड। अब डेटा फ्रेम वाई ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, तो उसको ट्रू कर देगा, और जो लेस देन जीरो होगा तो उसको फॉल्स कर देगा। तो ऐसे करके आप लोग को करना है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आप लोग कर पाओगे। ये आपको अभी जरूरत नहीं है, ये हाई लेवल, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग पैंडास डेटा फ्रेम को यूज करेंगे। और भी बहुत सारे चीजें हैं, को रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो वो सारे डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज करेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, वही सेम बातें, ये जो अभी यदि मैं ये सारी बातें करूँ, तो द सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड ओवर देयर। तो व्हाट आई विल डू, जो भी आपको अभी यहाँ पे मैंने बताया, हम फाइल पूरी दे देंगे, आई विल बी गिविंग यू द होल फाइल, एवरीथिंग इज रिटन एक्सप्लिसिटली ओवर हियर। ओके, तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग इजीली इससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल आप फिर मैं डेटा डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम और डिटेल में करेंगे। अंडरस्टूड। तो दिस इज फॉर पैंडास। नाउ लेट्स गो टू नंपाई, नंपाई थोड़ा कर लेते हैं, और नंपाई करके वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग नंपाई, ओके, बिफोर स्टार्टिंग नंपाई यू शुड रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, टेक सम टाइम एंड रिवाइज दिस थिंग्स, और उसके बाद एक मैं छोटा सा वीडियो क्लिप अभी चलाने वाला हूँ, वो वीडियो क्लिप आप लोग देखो ऑन artificial intelligence only, that what's going on now. Okay, and then we can start with numpy. Now let's start with the pandas practical. Okay, please go to Google Chrome. Okay, now यहाँ पे आपको Google Colab में जाना पड़ेगा, Google Colab, GOGL। एक्चुअली आई हैव लॉग्ड इन, मैंने लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिंपल गूगल कोलैब लिखेंगे, गूगल कोलैब। अब वेलकम टू कोलैबोरेटरी, यहाँ पे जाओ। उसके बाद हम करेंगे न्यू नोटबुक। ओके, अभी नोटबुक यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, प्लीज़ वेट। हाँ, कैन यू सी दिस, कनेक्ट, इसको कनेक्ट करो पहले। कनेक्ट होने के बाद ही आपकी सारे जो भी कमांड्स है प्रोग्राम से रन करेंगे। ओके, तो लेट इट गेट कनेक्टेड, प्लीज़ वेट। ये कनेक्ट होता तो एक काम करो, फाइल आप अपलोड नोटबुक करो। एक नोटबुक है पैंडस की, मैंने जो जिसके डिस्कस किए थे उसको मैं अपलोड करता हूँ। तो उस फाइल, इसमें जाइए, डे 2, ये पैंडस दिख रहे हैं, पैंडस में जाओ, पैंडस को ले लो। इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड, कैन यू सी रैम, डिस्क, ये सब लिखे हुए हैं, तो मतलब इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे फिर कनेक्ट करता हूँ क्योंकि इट्स गॉट डिसकनेक्टेड। ओके, ना पैंडस स्टार्ट करें, तो पैंडस के बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इम्पोर्ट नम्पा इज एन पी, पैंडस इज पी डी, ये हमने बात की थी। इसको आप रन करो पहले। उसके बाद हेडिंग्स इक्वल टू ए बी सी, लिस्ट 1 इक्वल टू दिस, ये सारे लिस्ट ही है। देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेंगे दैट इज नोन एज ए लिस्ट, कीप इन माइंड। एरे 1 इक्वल टू एन पी डॉट एरे लिस्ट 1, अब ये एरे बन चुका हो।
ये जो लिस्ट है ये एरे बन चुका है, लिस्ट वन। और डिक्ट वन इक्वल टू ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 22, सी का वैल्यू 33। जैसे डिक्शनरी में आप जाते हो कोई वैल्यू का मीनिंग होता है ना, वैसे ए का मीनिंग है यहाँ पे 11, बी का मीनिंग है 22, सी का मीनिंग 33। वो हमने खुद ही डिसाइड किए। ओके ओके। अब हेडिंग्स को यदि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, हेडिंग्स लिख के यहाँ पे लिख दो जैसे आप करना चाहते हो। अब हेड ये सारे हो गए। ओके। अब मुझे एक कोड चाहिए, प्लस कर दो। अब हेडिंग्स लिखना है यहाँ पे, देखो HEADINGS टाइप कर रहा हूँ मैं। हेडिंग्स लिख के यहाँ पे आप ये कर दो, देखो ABC हेडिंग्स का वैल्यू आ गया। ऐसे करके यदि आपको लिस्ट वन का चाहिए तो क्या करेंगे, LIST लिस्ट वन करके और यहाँ से रन कर दो। ये तो लिस्ट का लिस्ट ही आ गया, लिस्ट वन लिखो। अदरवाइज इट टाइपिंग में इशू है यहाँ पे हमारे लैपटॉप में, लिस्ट वन। दैट इज द प्रॉब्लम, थोड़ा टाइपिंग इस लैपटॉप में थोड़ा इशू है। तो लिस्ट वन का वैल्यू कितना था, 11, 22, 33, ये देखिए। अब डिक्ट वन यदि करोगे तो डिक्ट का वैल्यू आना चाहिए, प्लस कोड कर दो यहाँ पे डिक्ट वन, DICT डिक्ट वन। देखिए फिर वन लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसको लिखना है वन। देखो दो आ गया, डिक्ट वन लिख के एंटर कीजिए तो देखिए ए का वैल्यू 11, ये सारे पूरा डिक्ट का आ जाएगा। ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 22, सी का वैल्यू 33, यही सारे हमने यहाँ पे काम किए हैं। ओके। अब पासिंग आर्गूमेंट PD.सीरीज, सीरीज बनाना, डेटा इक्वल टू लिस्ट वन। लिस्ट वन मतलब लिस्ट वन का वैल्यू कितने थे, लिस्ट वन का वैल्यू था 11, 22, 33, तो 11, 22, 33 दिख गए। और ये है इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, जैसे मैंने किया था P.सीरीज एरे वन, तो एरे का वैल्यूज आ गए। डिक्ट वन तो डिक्ट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ABC आएगा ही, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 22, सी का वैल्यू 33, वो इंडेक्स में आ जाएगा। ओके। PD.सीरीज हेडिंग्स, तो क्या हो गया, हेडिंग्स की वैल्यू कितने हैं, हेडिंग्स में देखो वन, वो ABC है तो ABC ऑटोमेटिकली आ गया। ओके। पासिंग इंडेक्स, अब क्या किया, एक P.सीरीज डेटा इक्वल टू लिस्ट वन, और इंडेक्स में क्या कहते हैं, हेडिंग्स दे दिए। इंडेक्स में हेडिंग्स मतलब हेडिंग्स में क्या है, ABC, तो देखो ABC आ गया 11, 22, 33, एज वी डिस्कस्ड। मैं ये फाइल भी आपको, आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइल ऑल्सो। ओके, तो डो नॉट वरी। सीरीज इक्वल P.सीरीज, अब सीरीज में ये करो तो यू विल सी ABC 11, 22, 33। अब ए का वैल्यू मुझे चाहिए, तो सीरीज में स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएंगे। ऑपरेशन ऑन सीरीज डिक टू A1, B2, D3 है। ठीक है, दूसरा डिक्शनरी। ओके। अब सीरीज टू क्या कर दिए, ये डिक टू को इसमें डाल दिए, तो देखो सीरीज टू आ गई यहाँ पे। अब सीरीज वन तो ऑटोमेटिकली हमने पहले ही कर चुके थे, सीरीज वन, कैन यू सी द सीरीज वन ओवर हियर, कहाँ किया था हमने सीरीज वन, सीरीज वन पहले हमने डिफाइन किया हुआ है। अब सीरीज टू हो गया, सीरीज वन हो गया, अब दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे मैच नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा, नैन कर देगा। कैन यू सी और डी, नैन कर दिया उन्होंने। अब क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, तो इस तरह से हमने क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स भी क्रिएट किए। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसकी ये प्रैक्टिकल फाइल है। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग द प्रैक्टिकल फाइल विथ यू, यू जस्ट डू इट ऑन योर ओन, और जहाँ पे भी आपको इशू आएगा आप मेल करो। ठीक है, ये सारे ऑटोमेटिकली कोड्स, बहुत सारे कोड्स हैं, ये सारे रन किए हुए हैं। आप लोग थोड़ा खुद देखोगे, खुद थोड़ा सा आप मेहनत करोगे इस पर। ठीक है, तो एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, इसको इतना डिटेल में, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, तो वी हैव टू डू इट इन अ फास्ट मैनर। तो पैंडस के ये जितने ये फाइल मैं आज आपको शेयर करूँगा, अभी जैसे ही खत्म हो जाएंगे आपकी ट्रेनिंग, तो आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस फाइल्स। इस फाइल से आप लोग खुद ही प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। ओके, होप आई एम क्लियर। आप पैंडस के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे नंपा। पैंडस के बाद एक वीडियो के बात हो रही, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सो द वीडियो, क्योंकि ये कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज समबडी हैज़ कंप्लेंट अबाउट इट। तो हम वीडियोज अगर नहीं थे, आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट लिंक बिलो, वो भी आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो देखना। और बाकी पाइथन की आपके पास फाइल्स सब कुछ आपको पता ही है, जो आपके चैनल में है, उसको आप कीजिए। नंपाई अभी डिस्कस करेंगे, नंपाई डिस्कस करके, एंड देन वी आर गोइंग, नंपाई ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन सेशन वन। तो वही वट एवर आई हैव डिस्कस इन सेशन वन, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस, वही सेम चीज़ ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड, बार बार उठो उसके मेहनत करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट यू शुड गो थ्रू इट। मैं वो फाइल भी शेयर कर दूंगा आप लोग का साथ। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ठीक है, आप लोग फिर नामपाई कंप्लीट हो जाए, तो नामपाई कंप्लीट करने के बाद ही वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो टू नामपाई नाउ।
Now let's start the topic NumPy. It's a very important topic. Okay, NumPy. It is actually numerical Python. The full form is numerical Python. Numerical Python. So what we do actually, it is a general purpose array package processing package. Actually, it is for array. It is a array processing package. ये हमारा मशीन लर्निंग में काफी यूज होंगे numpy के। इसमें बहुत सारा फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है, न्यूमेरिकल फंक्शंस है जो हम यूज करेंगे। ये जो हमारा जो numpy है, दिस इज फॉर n डायमेंशनल एरे। हम n डायमेंशनल एरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। n डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन वो तो होना ही है, ठीक है। और इट इज अ वेरी पावरफुल टूल। इट इज यूजफुल इन लीनियर अलजेब्रा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज। हर जगह हम यूज कर सकते हैं जितना हमने मैथमेटिक्स वट एवर वी नो। जैसे लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक है, आप लोग को शायद नहीं पता, ठीक है। वो एरे प्रोसेसिंग पैकेज चैप्टर ही है वो एक्चुअली, ठीक है। वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। इवन वी कैन यूज दिस इन कैलकुलस, वी कैन यूज दिस numpy in trigonometry, everywhere I can use। means that is a this is a very important topic, I'm telling you। so let's start। Actually, what we are doing means all the coding in which software? Colab, Google Colab, which is online software provided by Google। So we do not need to install anything. But suppose we are installing this. So suppose we want to install NumPy. So for that we are going to write pip install NumPy, ठीक है। तो कहीं और यदि हमें इसको इंस्टॉल करना है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा pip install numpy। ओके, एनाकोंडा में सपोज हमें इंस्टॉल करना है तो फिर हमें pip install numpy डिफरेंट आईडीज में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन एनाकोंडा में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। जब हमें उसको जरूरत है तो ये हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, इंपोर्ट numpy एज np। यानी सी हो भैया, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं। हमने ऑलरेडी मोनिका मैडम ने हमें बताया है जो लिस्ट कैसे बनाना है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट वन इक्वल टू 11 23 34 56, ये तो आप लोग को बनाना आ ही गया। अब लिस्ट वन को डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट वन लिख दो, 11 23 34 56 ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम numpy एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिस इज कन्वर्टिंग टू numpy एरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, np डॉट एरे और ब्रैकेट में जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन है, डाल दो। तो ऑटोमेटिकली ये आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये तो np डॉट एरे लिस्ट वन तो ये तो हो गया, लेकिन इसको सेव हमने कहीं नहीं किया। तो इसको हमने क्या किया, इस जगह सेव किया, एरे वन इक्वल टू np डॉट एरे लिस्ट वन। तो एरे वन में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब एरे वन को जैसे डिस्प्ले करोगे तो इट इज ए एक्चुअली numpy एरे। दिस वन इज एक्चुअली ए numpy एरे। now it is not a list, now it is a numpy array। आप क्या करेंगे, क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड कन्वर्टिंग इनटू ए एरे ऑफ टू डायमेंशन, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे देख लो, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, ये थर्ड लिस्ट है, तीन लिस्ट मैंने बना लिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट। आप क्या करेंगे, np डॉट एरे ब्रैकेट में लिस्ट टू डाल दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट इज ए 2D एरे। You can see it is a 2D array, and the matrix is of 3x3 matrix, if you say। क्योंकि 9 एलिमेंट्स है ना, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, क्रिएटिंग numpy arrays यूजिंग बिल्ट इन मेथड्स। कैसे देखते, यहाँ पे क्या है, ए रेंज भी मोनिका मैडम ने बताया, दिस वन इज द स्टार्ट। एंड ये जो 10 है, 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इंक्लूड क्या होगा, 10 - 1। 10 - 1 मतलब 9 तक जाएगा। और ये क्या है, दिस वन इज द स्टेप। जैसे 0 10 1 कर दिया तो 0 चलेगा, 1 क्योंकि 1 का स्टेप है, 1 का डिफरेंस है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 तो यूज नहीं, इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके उससे पहले वाला तो क्या हो गया, 9। तो 0 से 9। आई होप यू इट्स क्लियर। ओके, नाउ np डॉट अरेंज 0 10 2, यहाँ पे 2 का स्टेप ले लिया, तो क्या हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया।
10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो एक से चलेंगे। अब हमें सपोज क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑल जीरोज, सिर्फ जीरोज रहेगा, तो एनपी डॉट जीरोज ब्रैकेट में 5 डाल दो तो 5 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली। अब एनपी डॉट जीरोज 3 2, 3 2 मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। 3 रोज 2 कॉलम्स, देखो 3 रोज, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया, 3 रोज है और 2 कॉलम्स, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब उसमें क्या डालना है, सिर्फ जीरोज डालना है, तो देखो सारे में जीरोज है। अब ये जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ड्स वाले करेंगे, तो एनपी डॉट वर्ड सिंपल ब्रैकेट में 5, तो 5 वर्ड्स। आप 3 2 करके यदि वर्ड्स डाल दो तो क्या होगा, 3 रोज 2 कॉलम्स में सिर्फ वन डालना है। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया ये। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, creating an array where the values are spaced equally in an interval, कैसे, np dot lean space, this is very important, ब्रैकेट में 125, 125 मतलब क्या हो गया, 1 है 20 है और 5, 1 1 और 20, और क्या होगा, 5 एलिमेंट्स इसके बीच में आएगा। कितने एलिमेंट आएगा, 5 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 20 एंड 1, माने 3 एलिमेंट्स इन बिटवीन। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने इक्वल स्पेस कर दिया, 1 आ गया, 5.75 आ गया, 10.5 आ गया, 15.25 आएगा, 20। आप दोनों का डिफरेंस निकालो, 5.75 -1 कितना हो गया, 4.75। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 10.5 -5.75, तो क्या हो गया, ये जीरो है, 10 5 मतलब 5, 7 और 8 15, 7 और 7 14, और 9 -5 4.75। कैन यू सी दिस डिफरेंस इज ऑल्सो 4.75। सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस निकालो, तो ये भी 4.75 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये भी कितना आएगा, 4.75। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब 1 और 20 इंक्लूड होगा, और बीच में कितना आ गया, 3 एलिमेंट्स आ गया, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से एनपी डॉट लीन स्पेस 125। आप लोग क्या करना पड़ेगा, जब प्रोजेक्ट्स करोगे तो इस तरह के फंक्शंस की आपकी जरूरत पड़ेगी, आप बैठ के तो कैलकुलेशन तो करोगे नहीं, तो दिस नंपाई विल बी कैलकुलेटिंग ऑल दोस थिंग्स। आप क्रिएटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डायगोनल शुड बी 1, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। मतलब क्या हो गया, एनपी डॉट यू आई और ब्रैकेट में 3, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, और क्या हो गया, ये डायगोनल, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल का वैल्यू कितना हो गया, 1, और बाकी सारे क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट आर जीरोज, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये आप लोग को पता नहीं है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तो इसको आप जस्ट मैं बता शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, आप कोई डेटा लेते हो, डेटा, आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे तो उसका वैल्यूज क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर टू जीरो, जीरो जीरो के आसपास होगा, और ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन, ब्रैकेट में 3 दे दिया, तो 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, तो क्या हो गया, और ये देखो 1 के आसपास है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, आप np डॉट रैंडम डॉट रैंड 3 2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, देखो ये भी 1 के आसपास ही होंगे सारे। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होते हैं। अब क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, सेंटर्ड अराउंड जीरो, जीरो के आसपास होता है, क्योंकि इसका फिगर किस तरह का होता है, इस तरह की होता है। ओके, तो क्या होगा, तो ये इट्स सेंटर अराउंड जीरो, तो np डॉट रैंडम रैंड एन, एन इज, ये देखो यहाँ पे एन दिख रहे, एन इज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डॉट रैंड एन, ठीक है, तो एरे आ गया, ये सारे वैल्यूज आ गए। अब np डॉट रैंडम डॉट रैंड 4 2, तो 4 रोज 2 कॉलम्स, तो ये सारे वैल्यूज आ गए, ये रैंडमली आ रहे, इसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है कैसे आ रहे क्या आ रहे। ठीक है, अब np डॉट रैंडम डॉट रैंड इट ब्रैकेट में 1 50, मतलब ये है, जो 1 और 50 के बीच में 1 कैन बी इंक्लूडेड, 50 इज नॉट इंक्लूडेड, 50 नॉट इंक्लूडेड।
मतलब बात यह है, जे रैंड इंट जैसे रैंडमली कोई एलिमेंट होगा और डॉट रैंड इंट करके 1,50 करोगे तो 50 कभी इंक्लूड होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू इंक्लूड हो सकता है। और 1 और 50 में कोई 1 और 50 के बीच में कोई भी एलिमेंट हो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो 1 और 50 के बीच में एक 42 है, 42 एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। फिर इसको रन करोगे तो देखो कोई और एलिमेंट आ रहा है, फिर रन करोगे तो देखोगे कोई और एलिमेंट आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। आई होप आई एम क्लियर। अब यहाँ पे देखो, np डॉट रैंडम डॉट रैंड 155, 1 है, 50 है, 5 है। मतलब क्या हो गया, दिस 5 इज फॉर 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने बोल रहा। और क्या होगा 1 और 50 के बीच में, 1 इंक्लूड हो सकता, 50 नहीं। तो 1 मतलब क्या होगा, 1 और 50 के बीच में कोई भी 5 एलिमेंट्स हो सकता, तो 36 हो गया, 12 हो गया, 34 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, ये चीज। फिर एक बार रन करोगे तो कोई और एलिमेंट्स आएंगे 5। इस तरह की हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इन द numpy array, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। np डॉट arange 10,35, 10,35 एक एरे हमें लेना 10 और 35, मतलब 35 कैन नॉट इज नॉट इंक्लूडेड, 35 का एक नीचे, तो 35 माइनस 1 34, 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 14 ऐसे करके कितना तक है, 34 तक। इतना क्लियर है। अब ये कितने एलिमेंट है देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 एलिमेंट्स है। हम क्या करेंगे, इसको रिशेप देंगे, शक्ल चेंज कर, इसको रिशेप मतलब अलग डायमेंशन में हम देखेंगे। एंड एरे वन डॉट रिशेप 25 एलिमेंट्स है एक्चुअली। एरे डॉट रिशेप 5,5, तो क्या होगा 5,5 मतलब क्या होगा, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 में हो सकते, तो 5 क्रॉस 5 में ये एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं 2D एरे में। ये 1D एरे में था, हम इसको क्या किया 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड टू 2D एरे। अब आपने ये सारे एलिमेंट 5 क्रॉस 5 लिया हुआ है, और आपने लिखा एरे वन डॉट रिसेप 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट, तो लेगा नहीं, एरर आ जाएगा, क्योंकि 25 एलिमेंट है और हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स की आप ये ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स ले रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 क्रॉस 3 इज हो ही नहीं सकता। 3 क्रॉस 3 क्या होता है, 9 एलिमेंट, और 5 क्रॉस 5 25 एलिमेंट, तो बाकी 16 एलिमेंट्स कहाँ जाएगा। तो फिर क्या होगा, कैन नॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 25 इंटू द शेप 3 क्रॉस 3, मतलब 25 एलिमेंट को 3 क्रॉस 3 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू निकाल या मिनिमम वैल्यू निकालना है एरे में, तो एरे वन क्या है, ये वाली है। अब एरे वन डॉट मैक्स कर दो, मैक्स फंक्शन जैसे करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दिखाएंगे। मिन करोगे तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना 10, 10 दिखा देंगे। अब इंडेक्स देखना है, इंडेक्स मतलब क्या होता है, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स कितना 1, इसका इंडेक्स कितना 2, इसका इंडेक्स कितना 3, इसका इंडेक्स 4, इसका इंडेक्स 5, ऐसे करके, ठीक है। तो एरे वन डॉट मैक्स फंक्शन, यहाँ पे देखो एरे वन डॉट आर्ग मैक्स, जैसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है, ये जो 34 एलिमेंट है, ये क्या होगा 24th इंडेक्स में, 24th इंडेक्स। ऐसे जैसे मैंने 0 1 2 3 4 5 किए, 6 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो देखोगे दिस वन इज द 24th इंडेक्स, तो 24 आ गया। एआरआर वन डॉट आर्गमिन, आर्गमिन मतलब मिनिमम एलिमेंट का क्या है, पोजीशन क्या है 0 है, तो ऑटोमेटिकली 0 शो कर दे, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं और जाते आगे, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट वन लिस्ट में भी हमने पढ़े। अब शेप फंक्शन इज टू फाइंड द शेप ऑफ द एरे, जैसे एरे वन डॉट शेप किया दे 25 एलिमेंट दिखा रहा और कुछ नहीं दिखा रहा, बाद में रोज कॉलम्स वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब क्या है, दिस इज ए 1D एरे। अब एरे टू एरे वन डॉट रिशेप 5,5, इसको क्या किया, रिशेप करके 5,5 में कर दिया, 25 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो 25 एलिमेंट्स को 5 रोज 5 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब शेप देखेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 5,5 ही दिखेगा, 5 रोज 5 कॉलम्स। होप आप लोग को सब समझ में आ ही रहे, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द वे। ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ उतना टफ नहीं है इस चीज में यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एरे वन डॉट डी टाइप, डेटा टाइप ढूंढना है, किस तरह का डेटा टाइप है इसमें। जैसे एरे वन, ARR1, इसमें डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर 64 है, डेटा टाइप क्या है, इंट 64। तो देखो यहाँ पे इंट 64 दिखा रहे हैं। आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, देखेंगे क्या हो रहा है, ARR1 एरे आ गया, पूरे एरे आ गए। अब स्लाइसिंग करेंगे कैसे, ARR1 3 थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या है,
दिस वन इज जीरोथ एलिमेंट, दिस वन इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज सेकंड एलिमेंट, दिस वन इज थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या 13, तो देखो 13 दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो दिस वन इज कौन सा एलिमेंट, फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, दिस वन इज सेवेंथ, ऐसे है। अब क्या हो गया, एआरआर वन 1:5, मतलब क्या है, दिस वन इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस वन इज द फिफ्थ इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, 5 - 1, फिफ्थ इंडेक्स which is not included। 5 - 1 equal to fourth index is included। एग्जाम्पल ले लो, 1:5, वन फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 1 है 11, उसके बाद क्या कितना तक जाएगा, फोर्थ तक, तो क्या हो गया 11 12 13 14। देखो यहाँ पे देखो 11 12 13 14 आ गया। यहाँ से भी चेक कर लो, आप रिवेरीफाई कर लो, 11 12 13 14। ठीक है, अब क्या किया, यूजिंग स्लाइसिंग टू चेंज द वैल्यू, 1:5 कर दिया, मतलब क्या होगा 1 से 4 तक 50 वैल्यू 50 हमने उसको चेंज कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया। देखो 50 आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया, सारे वैल्यूज क्या हो गया 50 50 50 50 हो गया। ठीक है, वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑल्सो। अब एरे टू इक्वल टू एरे वन, ठीक है, अब एक एरे टू क्रिएट करेंगे। एरे वन क्या कौन सा एलिमेंट लेंगे, 10th से 14th तक लेंगे, क्योंकि 15 इज नॉट इंक्लूड, तो 10th से 14th, तो 10th से 14th को तो 7 8 9 10, 10th से कितना जाएगा 11 12 13 14, तो कौन कौन सा एलिमेंट आ गया 20 21 22 23 24, देखो आ रहा 20 21 22 23 24, देखो आ गया ऑटोमेटिक। अब एरे टू में क्या किए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, इस टू है और अभी नीचे कुछ नहीं लिखे, मतलब ऑल एलिमेंट्स 25, तो देखो सारे एलिमेंट्स 25 हो गया, मीन्स ऑल एलिमेंट्स, कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स 25 हो गया। अब एरे वन का फिर सारे आप डिस्प्ले करें एरे वन को, आप क्या करेंगे एरे वन को, आप क्या करेंगे, ये एरे वन को कॉपी करना चाहते हो, तो एआरआर वन डॉट कॉपी इक्वल टू एआरआर कॉपी, तो क्या हो गया एआरआर कॉपी में क्या हो गया, ये पूरी कॉपी हो गया, ये जो सारे एलिमेंट्स है ये कॉपी हो गए। अब एआरआर कॉपी को जैसे डिस्प्ले करोगे ये यही एरे ऑटोमेटिकली कॉपी कॉपी दिखाएंगे, शो करेंगे। अब क्या करें एआरआर कॉपी में क्या किया, ऑल एलिमेंट्स को क्या कर दिया मैंने, वन कर दिए, तो वन कर दिया तो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, वन हो गया ऑटोमेटिकली। और एआरआर वन जो था वही है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल एरे रह गया है, ओरिजिनल एरे में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। एरे कॉपी में मैंने क्या किया, सबको वन कर दिया, तो सब वन हो गया। देखो अब हम लोग चलते 2D एरे में कन्वर्ट करते हैं, एआरआर टू इक्वल एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये 2D एरे हो गया, दिस वन इज 2D एरे। अब एरे टू क्या क्या 0 1, मतलब क्या, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं 0 0, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं 0 1, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं 0 2, इसको क्या बोलते हैं 1 0, इसको 1 1, इसको 1 2, इसको क्या बोलते हैं 2 0 2 1, ये 2 2, इस तरह की। अब इसको बोलते हैं जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम, क्योंकि ये देखो ये जो कॉलम है ये जीरोथ कॉलम है, जीरोथ कॉलम है, एंड दिस वन इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज सेकेंड कॉलम। अब इस तरह से देखोगे, इधर देखोगे तो ये क्या है जीरोथ रो, और ये वाला क्या है फर्स्ट रो, और ये वाला क्या है सेकेंड रो। तो देखो 0 और 0, 0 0 का वैल्यू कितना है, 0 0 का पोजीशन में क्या है 1 है, 1 है। 0 1 पोजीशन में क्या है 2, 0 3 0 2 पोजीशन में क्या है 3, देखो 0 और यहाँ पे 2 है ना, तो 0 2 पोजीशन हो गया। उसके बाद ये क्या है फर्स्ट रो, मतलब 1 हो गया, और ये क्या है 0 है, तो 1 0 हो गया। ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 हो गया। ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो 1 2 हो गए। ठीक है, ये सेकंड है मतलब 2, और ये क्या है 0 है, तो 2 0 हो गया। ये 2 है, ये क्या है 1, फर्स्ट रो 2 1 हो गए। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो क्या हो गया 2 2 हो गए। तो ऐसे करके तो हम क्या करेंगे जीरोथ जीरोथ एंड फर्स्ट कॉलम मैंने 0 1, 0 1 का वैल्यू कितना है 2, तो देखो 2 इज डिस्प्लेड हो गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 करके भी लिख सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम।
आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर आप लोगों को इसको इसको बार बार इसको देखो, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। बहुत इजी करके हमने समझाया इसको। आप गेटिंग द सब पार्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। सब पार्ट मतलब क्या होगा, छोटा पार्ट हमें चाहिए। सब पार्ट मतलब छोटा पार्ट मैट्रिक्स से चाहिए, सारे मैट्रिक्स नहीं चाहिए। एरे टू क्या किया, रोज हमने बताया नहीं है यहाँ पे, कॉलम बताया। हाँ, रो ये दिया है और ये दिया है, ये कॉमा, ये किसके लिए है, दिस वन इज फॉर रो एंड दिस वन इज फॉर कॉलम। इज इट क्लियर? अब क्या है, जो रो है ये क्या आ जाएगा, टू, टू इज द एंड पॉइंट, मतलब क्या आ जाएगा, जीरोथ रो एंड फर्स्ट रो, ये दो लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि टू इज द एंड पॉइंट, तो टू तो लेने से जीरोथ रो और फर्स्ट रो, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो से स्टार्ट है, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ऐसे कुछ लेंगे। अब हम मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स को फिर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्लियर है। ये एक मैट्रिक्स है। आप जीरोथ रो फर्स्ट रो, ये क्या है, ये जो है, दिस वन इज जीरोथ रो, और ये जो है, ये क्या है, दिस वन इज फर्स्ट रो। इतना तो क्लियर है। और यहाँ पे क्या, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, दिस वन इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज द सेकंड कॉलम। और ये क्या है, ये वाला जीरोथ कॉलम है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम से। अब देखो, ये जो मैंने बोला जीरोथ रो एंड फर्स्ट रो, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट ये है, कॉमन एलिमेंट ये है, कॉमन एलिमेंट ये है, कॉमन एलिमेंट ये है, तो डिस्प्ले क्या होगा, 2 3 5 6, तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 2 3 5 6। तो देखो तो 2 3 5 6 डिस्प्ले हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 3 5 6 डिस्प्ले हो रहा है। होप आई एम क्लियर। ऐसे करके निकालते हैं, दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन गोइंग ऑन इन बिहाइंड, अंडरस्टूड। अब चलो चलते, फिर एरे वन लिख दिए मैंने। अब बुलियन की बात करेंगे। बुल एरे इक्वल टू एरे वन ग्रेटर देन 20, एरे वन ग्रेटर देन 20 है, वो सारे डिस्प्ले करेंगे। उसको क्या करेंगे, एरे वन ग्रेटर देन 20 यदि करेंगे और बुल एरे लिख देंगे, तो क्या होगा, वो जो 20 से ग्रेटर है उसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, और 20 से जो नीचे है उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। जैसे 10 है, 10 20 से नीचे तो फॉल्स हो गया। 50 50 20 से ग्रेटर है तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, और जो नीचे होगा उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो दिस इज द वे इट्स रिटन, ओके। तो अब एरे वन में बुल एरे कर दिए, बुल एरे, उसका मतलब क्या होगा, एरे वन में वही एलिमेंट्स को डिस्प्ले करो जो ग्रेटर देन 20 है। तो देखो ग्रेटर देन 20 जो भी है वही वही एरे में डिस्प्ले कर रहा है ऑटोमेटिकली, देखो ऑल आर ग्रेटर देन 20। अब एरे वन लेस देन 20 में जो भी है, तो एरे वन में क्या होगा, लेस देन 20 में जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले कर दे रहे। एक बार और डिस्कस करें, एरे दे दिया है, अब बुल एरे इक्वल टू एरे वन ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 का जो है एलिमेंट्स उसमें ट्रू लिखेंगे, और जो लेस देन है ऑटोमेटिकली उसको क्या होगा, फॉल्स कर देगा। बुलियन मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो क्या हो गया, जो लेस देन 20 है, तो क्या, जैसे 10 है तो फॉल्स हो गया। और फॉल्स कहाँ कहाँ है, ये देखो यहाँ पे लेस देन 20 से 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, तो 15 16 17 18 19 ये सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। उसके बाद देखिए कहा और कहीं और फॉल्स नहीं है, बाकी सारे ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब फिर करते ऑपरेशन, अरे अरे विथ है ऑपरेशन, थोड़ा सा एक दो और ऑपरेशंस करते, एग्जांपल्स लेते। एरे थ्री इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज 0,5, 0,5 मतलब क्या होगा, जीरो स्टार्ट होगा और 5 नहीं लेंगे, 5 से एक कम, तो कितना होगा, 0 से 4 तक डिस्प्ले कर रहे। अब एरे थ्री भी लिए, एरे थ्री प्लस एरे थ्री, माने दोनों एरे को ऐड करेंगे, तो जीरो, जैसे 0 1 2 3 4 प्लस जीरो, सॉरी ये वन है, 1 2 3 4, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो और जीरो जीरो में ऐड करेंगे तो कितना हो गया, जीरो, वन वन में ऐड करेंगे टू, टू टू में ऐड करेंगे फोर, थ्री थ्री ऐड में करेंगे सिक्स, फोर और फोर में ऐड करोगे तो कितना होगा, 8। तो ये आउटपुट आएगा देखो,
02468। एरे थ्री माइनस एरे थ्री करोगे तो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, तो जीरो हो जाएगा। अब एरे थ्री इंटू एरे थ्री करते, 0 1 2 3 4 ऐसे, 0 1 2 3 4 ऐसे। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो में जीरो होता है, वन वन में वन, टू टू में फोर, थ्री थ्री नाइन, फोर फोर 16, इस तरह कैलकुलेशन होते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब एरे थ्री, एरे थ्री को लिखे तो 0 1 2 3 4। अब इसमें फाइव ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या, फाइव ऐड कर रहे हैं मतलब क्या, फाइव जो ऐड कर रहे हैं वो प्लस फाइव जो कर रहे हो, 0 1 2 3 4, इसके साथ जो प्लस फाइव कर रहे हो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा रब करना था, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गया, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ रहा है क्लास को। तो प्लस फाइव मतलब क्या हो गया, ये जो फाइव है, फाइव इसके साथ भी प्लस फाइव हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस फाइव हो जाएगा, इसके साथ भी फाइव हो जाएगा, स्केलर को ऐड कर रहे हैं प्लस फाइव। तो कितना हो गया, 5 6 7 8 9। अब माइनस टू करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली माइनस होकर दिखेगा। इंटू थ्री करेंगे तो सब में थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड सिक्स करेंगे तो क्या होगा, सिक्स से सब डिवाइड होगा। टू द पावर ऑफ थ्री करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, ये है ना। तो टू दी पावर ऑफ थ्री मतलब क्या हो गया, जीरो क्यूब हो गया, वन क्यूब हो गया, टू क्यूब हो गया, थ्री क्यूब हो गया, फोर क्यूब हो गया। जीरो क्यूब जीरो होता है, वन का क्यूब वन होता है, टू का क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, टू इंटू टू, तो कितना हो गया, एट। थ्री क्यूब मतलब क्या होगा, थ्री इंटू थ्री, तो कितना हो गया, 27। फोर का क्यूब मतलब फोर इंटू फोर कितना होता है, 64। देखो एक और चीज, पाइथन में यदि आप जीरो बाई जीरो करोगे तो इट विल गिव एन एरर, बट इन नंपाई नहीं देगा एरर। वो बोलेगा दैट इज ए नैन वैल्यू, नैन वैल्यू, नल वैल्यू वो बोलेंगे उसको, उसको नैन कंसिडर करेगा, ठीक है। और पाइथन में यदि आप करोगे तो जीरो बाई जीरो क्या क्या एरर, एरर देगा, ये याद रखना आपको। अब एरे थ्री दिया हुआ 0 1 2 3 4, अब एरे थ्री बाई एरे थ्री डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो बाई जीरो डिवाइड होगा, जीरो बाई जीरो तो डिवाइड होता नहीं है, जीरो बाई जीरो क्या होगा, नैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नैन। तो देखो यहाँ पे नैन हो गया, वन बाई वन वन होगा, टू बाई टू कितना होता है वन, थ्री बाई थ्री वन हो जाएगा, फोर बाई फोर कितना होगा वन, इस तरह की। और 0 1 2 3 4 यही है ना, बाई जीरो हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, बाई थ्री हो जाएगा, बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं एल थ्री बाई एल थ्री। तो जीरो बाई जीरो नैन हो गया, वन बाई वन वन, टू बाई टू वन, थ्री बाई थ्री वन, फोर बाई फोर वन। अब वन डिवाइडेड एरे थ्री, एरे थ्री, तो वन डिवाइडेड एरे थ्री करोगे तो क्या होगा, वो जो वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली वन से डिवाइड होकर वो वैल्यूज दिखेंगे आपको। अब एनपी डॉट एस क्यू आर टी एरे थ्री, एरे थ्री क्या है, 0 1 2 3 4, ये है ना। अब एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट निकालो, इसके स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, वन का स्क्वायर रूट वन होता है, रूट टू के कितना होता है 1.414, देखो दिख रहा। रूट थ्री कितना होता है 1.732, दिख रहे। और फोर का क्या होता है टू होता है, तो टू, दिख रहे ये चीज। अब एनपी डॉट ईएक्सपी, एनपी डॉट ईएक्सपी एरे थ्री। अब एरे थ्री का क्या करें, एक्सपोनेंशियल, मतलब ई टू द पावर ऑफ जीरो, ई टू द पावर ऑफ वन, ई टू द पावर ऑफ टू, ई टू द पावर ऑफ थ्री, ई टू द पावर ऑफ फोर। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, ई। तो ई टू द पावर ऑफ जीरो क्या होता है, वन होता है, वन तो हो गई। ई टू द पावर ऑफ वन क्या होता है, ये वाला वैल्यू है। ई टू द पावर ऑफ टू क्या है, ये। ई टू द पावर ऑफ थ्री क्या है, ये वाली वैल्यू। ई टू द पावर ऑफ फोर क्या है, ये वाला वैल्यू। ये आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ये बाद में काम आएगा, आप लोग डू नॉट गेट पैनिक विद दिस। अब एरे थ्री डॉट मैक्स करोगे तो वैल्यू कितने हैं, फोर है। So let's start the practical session of NumPy. Okay. So as discussed, let us start. I have already uploaded my notebook over here in the Google Colab. Now let me import. I have imported over here. Then I have to make a list. List 1 equal to 11, 23, 34, 56. As discussed, I am doing the same things. Then list 1. I am going to provide this Python notebook. Okay, do not worry about it. Array 1 equal to np dot array list 1. अब क्या किया मैंने, लिस्ट को पास कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये array 1 में सेव हो गया एज ए numpy array। अब array 1 को ये करो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब लिस्ट 2 क्या किया मैंने, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट मैंने डाल दी, तीन थ्री लिस्ट, 1 2 3।
कंप्राइज ऑफ 3 एलिमेंट्स, इस लिस्ट कंप्राइजेज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 9 एलिमेंट्स हो गए लिस्ट टू बनाओ। अब np डॉट एरे लिस्ट टू, तो यू कैन सी दैट इट इज ए मैट्रिक्स। अब np डॉट एरे 0 to 10, और क्या है, स्टेप कितना है, 1 है, तो 10 तो हम लेंगे नहीं एज डिस्कस, ठीक है, तो 10 से नीचे क्या 9, तो 0 से 9 तक और हमने ले लिए, ये दिखा रहे, इट्स शोइंग ओवर ये। अब 2 यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 स्टेप साइज 2, तो 2 के स्टेप साइज 2 का डिफरेंस होगा, देखो। अब क्रिएटिंग एरेज ऑफ ऑल जीरोज, मतलब क्या होगा, सारे जीरोज है, देखो 5 जीरोज, 5 ब्रैकेट में 5 लिखा तो 5 जीरोज। अब 3 रोज 2 कॉलम, मतलब क्या, 6 जीरो 3 रोज और 2 कॉलम्स के फॉर्म में, यू कैन सी हो गई है। गेटिंग एरे ऑफ वंस, तो np डॉट वंस करके क्या हो गया, 5 वंस आ गया। np डॉट वंस क्या हो गया, 3 रोज 2 कॉलम्स में क्या हो गया, सिर्फ वंस ही होंगे, तो 1 1 1 1 करके हैं 6 वंस है, देखो 1 2 3 4 5 6 वंस आर देयर। अब क्या क्या लिंक स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कोई आपने एक रेंज दे दिए, एक एक फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दे दिए, और आप बोलोगे मुझे 50 टुकड़े में चाहिए, तो ये 50 टुकड़े भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 टुकड़े बोले तो 5 टुकड़े में हो गए, देखो 1 और 20 इज इंक्लूडेड, 1 एंड 20 इज इंक्लूडेड। चलो इसको हम क्या करेंगे, सपोज आपने कर दिए 20 टुकड़े, 20 नहीं 30 टुकड़े कर दो, 30, तो देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हो 30 टुकड़ों में कर दिया, एंड ऑल आर इक्वली इवनली स्पेस्ड। अब इसके और इसके डिफरेंस 1 और इसके डिफरेंस निकालोगे जो होंगे, या 1.655 और 2.3103, ये इसके डिफरेंस निकालोगे सेम निकलेंगे, तो ऑल आर इवनली स्पेस्ड। ये 30 100 करो, 50 करोगे तो 50 के 50 दिखाएंगे, देखो 50 कर देते हैं 1 और 20 के बीच में, हाउ पावरफुल इट इज, सी 50 एलिमेंट्स आर देयर। आप लोगों को समझ में आई क्या होगा ये चीज, हाउ पावरफुल नंपाई इज। अब क्रिएटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी सारे क्या होगा, 0 होंगे। यहाँ पे 5 करोगे तो 5 क्रॉस 5 दिखाएंगे ऑटोमेटिकली। अब np डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिकली शो करेंगे, ये सिंगल 1 डायमेंशनल एरे है। अब 3 रोज 2 कॉलम्स में दिखा होगा तो 3 रोज 2 कॉलम्स में भी शो करेंगे। अब यहाँ पे n लगा हुआ देख रहे हो, मतलब क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड अराउंड 0। अब 4 2 कर दिया, जरूरी नहीं 4 2 3 2 कर दो, या मेरी मर्जी में 4 2 करके रखा है, ठीक है, इज नथिंग लाइक दैट। अब क्या हो गया, np डॉट रैंडम रैंड इंट 1 और 50 में 50 इंक्लूडेड नहीं होगा, मैंने बोला था ना, 1 से 49 के बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। चलो इसको चेक करते हैं, एलिमेंट क्या आ गया, 22 आ गया, अभी 42, अब 22 हो गया, एक बार और चेक करते हैं, 34 हो गया, तो और रैंडमली क्या हो रहा है, 1 और 50 के बीच में कोई भी एलिमेंट लेना, 1 भी ले सकते हैं लेकिन 50 नहीं लेगा, एक बार और चेक करो, देखो 32 आ गया। अब क्या किया, 5 एलिमेंट्स चाहिए 1 और 50 के बीच में, तो क्या होगा, 30 45 32 ऐसे करके आ गया, एक बार और मैं रन करके देखता हूँ, देखो चेंज हो गए, तो वैल्यूज हैव बीन चेंज्ड, वही चीज़ मैं बोल रहा था। आप np डॉट अरेंज 10 35 एरे एक ले रहा हूँ, ठीक है, 10 से 34 तक लेगा, फिर देखो 35 इज नॉट इंक्लूडेड, उससे एक कम, तो 10 से क्या हो गया 34 तक जा रहे हैं। आप क्या किए, ये कितने 25 एलिमेंट्स है, मैंने ऑलरेडी काउंट करके आपको दिखा चुके थे। अब इसको 5 क्रॉस 5 एरे में भी मैं कन्वर्ट कर सकता, तो 5 क्रॉस 5 में ऑटोमेटिकली आ गए। अब हम क्या करेंगे, 5 क्रॉस 5 को 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, एरे 1 को, तो ये कभी नहीं होंगे, देखो एरे आ गया, कैनॉट बी रीशेप्ड इनटू 3 क्रॉस 3। अब एरे 1 फिर आप हम डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, एरे 1 डॉट मैक्स 34, और मिनिमम एलिमेंट क्या है 10 हमें दिख रहे हैं, तो ये भी 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। उसके बाद ये देखेंगे हम, इसका क्या क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, इंडेक्स वैल्यू जो 0 1 हमने अभी डिस्कस किए थे पिछले बार, तो क्या गया 24, इसका इंडेक्स वैल्यू कितना 24, और मिन का इंडेक्स वैल्यू और 0 ही होंगे, क्योंकि 0 इज द हमारे मिनिमम वैल्यू, 10 इज द मिनिमम वैल्यू। अब शेप ढूंढना चाह रहा हूँ,
तो जैसे क्या हो गया, सिर्फ 25 दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे, उसका मतलब क्या है, ये वन डायमेंशनल एरे है विथ 25 एलिमेंट्स। अब रिशेप कर दिया 5x5 में, तो 5 और रोज 5 कॉलम्स हो गए। अब उसके बाद शेप चेक करेंगे तो 5x5, 5 रोज 5 कॉलम दिख रहे हैं, 2D एरे हो चुके हैं। आप डेटा टाइप देखना चाहते हैं, एरे में एरे 1 में कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर 64, तो इंटीजर 64 दिख रहा है। अब एरे 1 को फिर डिस्प्ले करो। अब एरे 1 का थर्ड एलिमेंट 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो क्या हो गया, देख रहे हैं। अब 1:5 हमने बताए थे, 1:5 क्या होता है, फर्स्ट मैंने 0 1, ये वाला 11 से कितने तक जाएगा, फोर्थ, या 1 से 4 तक, या तो 0 1 2 3 4, देखो 11 12 13 14। अब क्या किया, 1:5 में क्या किया, 50, मतलब 1 से 4 तक क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स 50 में कन्वर्ट कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब देखो एरे 1 क्या हो गया, 50 50 50 50 हो गए ऑटोमेटिकली। अब एरे 2 में क्या किया, एरे 1 का कुछ एलिमेंट्स मैंने ले लिया, क्या होगा 10 से 14 तक, 15 तो ले नहीं सकते, 10 से 14, तो 0 1 2 10, 10 से 14 तक जो भी एलिमेंट आएंगे वो एरे 2 में आ गए। अब एरे 2 में क्या किया, सारे एलिमेंट्स को क्या किया, 25 कर दिया, सारे एलिमेंट्स, इस टू दिया और कुछ नहीं दिया, मतलब सारे एलिमेंट्स। अब एरे 2 को जब डिस्प्ले करोगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या होगा, 25 शो करेंगे। एरे 1 क्या है, वही है सेम जो था पहले। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करना चाहते हैं ताकि एरे ओरिजिनल एरे में कोई फर्क ना पड़े। अब एरे कॉपी देखो यहाँ पे किया अब इसके सारे एलिमेंट्स को 1 करना चाहते हैं, सारे एलिमेंट्स को 1 किया, एरे 1 में कोई फर्क नहीं पड़ा, एरे कॉपी में ही फर्क पड़ा। आप देखो एरे 1 को फिर डिस्प्ले करो, क्या हो गया, वो सारे एरे 1 एज यूजुअल है, और एरे कॉपी में क्या हो गया, 1 1 1 हो चुका है, देखो। अब फिर एरे 2 को हम 2D एरे में कन्वर्ट कर, 2D एरे ये कर रहे हैं, अब एरे 2 को देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब क्या है, एरे 2 0 1 0 1 हमने बता दिया था, पोजीशन 0 0 0 1, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को पता है, हम सिर्फ रन कर रहे हैं, ये भी हमने बता चुके हैं व्हाट इज दिस। अब फिर एरे 1 को हम डिस्प्ले करते देखते हैं। अब एरे 1 ग्रेटर देन 20, वही ग्रेटर देन 21 मतलब क्या हो, ग्रेटर देन 20 को ट्रू करेंगे, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, देखो फॉल्स हो चुके हैं, ये फॉल्स है, इधर फॉल्स, इधर फॉल्स, सारे फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू। आप बोल एरे में क्या है, जो ट्रू एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिख रहे, जो ग्रेटर देन 20 वही दिख रहे। अब एरे 1 क्या क्या, एरे 1 लेस देन 20, लेस देन 20 का जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अब एरे 3 इक्वल टू np डॉट ए रेंज 0 5 मतलब 0 से 4 तक जाएगा, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब क्या हुआ, सम एडिशन मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्शन भी बताया था, मल्टीप्लिकेशन भी बताए थे, सारे मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब एरे 3 को मैंने 5 से, मतलब सबको 5 से ऐड हो जाएंगे, -2 मतलब सबको 2 से माइनस हो जाएगा सारे एलिमेंट्स, 3 से मतलब 3 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड एरे 3 को 6 से डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड दिखा रहे, ये आउटपुट टू द पावर ऑफ 3 या 2 टू द पावर ऑफ 3, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एरे 3 क्या है, 0 1 2 3 4। अब एरे 3 बाई एरे 3 कर दिए, तो देखोगे 0 बाई 0 क्या होगा, नैन, देखो नैन दिख रही है यहाँ पे। अब 1 डिवाइडेड एरे 3 तो क्या होगा, ये सारे वैल्यूज आ गए ऑटोमेटिकली। अब इसकी वर्टी निकालना 0 1 2, तो वही जो मैंने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नयापन आप दिखेगा नहीं आपको, ये हम आपको रन करके दिखा रहे हैं। मैक्सिमम एलिमेंट, आप साइन कोसाइन ये सारे आपको ज़रूरत नहीं है, ये सारे हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यही सारे प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैट प्लॉट लिव करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डू द मैट प्लॉट लिव।